welcome you all for the today's webinar. I also welcome today's speaker, learned, well-known and renowned speaker, CA Dr. Girish Ahuja, for the today's webinar at JB Nagar CP Study Circle platform. We will start our webinar with the video on Know Your Ethics. Thank you. Topic for the today's webinar is amendments brought in by Finance Act 2020 and provisions of taxation and other law ordinance 2020. I thank you, CA Dr. Girish Ahuja, for accepting our invitation to share his valuable knowledge and experience. I also thank you, past Central Council member of our institute, our own CA Sanju Maheshwari ji, for helping us to arrange this webinar. I now request CA Sanju Maheshwari ji to formally introduce our today's speaker. Thank you, Simaji. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning, everybody. Girishi, we extend a very heart welcome. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. We are very privileged to have you with us this morning. Girishi, just a brief backdrop of our structure in terms of JB Nagar CP Study Circle, because you have been part of the institute and been very actively involved with various limbs of the institute, be it the regional council, the central council, the branches. So this JB Nagar CP Study Circle was formed, sir, way back in 1999, much before the CP became mandatory in 2003.
The point that I was trying to emphasize here is, sir, that most of the limbs of the institute would be looking towards, focusedly towards probably doing CP programs. But the thought and the culture that we have at our study circle has been that how to focus on the contemporary subjects and have the experienced speakers and faculties who can come and share their knowledge with our youngsters here. And CPRs is actually a incidental element to our core activity of ensuring that our members learn. And towards that extent, this has been an active activity that we have been pursuing for the past now more than 2 decades. And the concept has been here, sir, that rather than looking at giving value for money, as most of the normal people would tend to think, the concept here is actually how do we give value for the time that is that a person invests here. Because in Bombay, you are aware, sir, that a person who wants to come to a particular program needs to spend an hour coming and going, even on a Sunday morning, and then spends a few hours here. So the whole objective and the focus has been that members should be able to derive value for the time spent. And that is how the entire concept of the teamwork has been here, sir. We have been having members who were first actually get involved in actively in terms of being as coordinators, then actually get into core group, then deputy convener and convener. By this process, we are able to ensure that we are able to have, the right thought process across over a period of time. And that's what I thought I must share about JB Nagar CP Study Circle, because we believe that knowledge is most important, and having this kind of a platform where we are able to have the best of the speakers and which encourages the youngsters to interact with the seniors. Friends, the work assigned to me by Seema Madam, our convener, is in terms of introduction of Girish Ahuja ji. But I think no chartered accountant needs any introduction as far as Girish Ahuja ji is concerned. So I don't think I need to share with all of you that Girish Ahuja ji has been a rank holder in inter exams as well as his final exams, and has done his graduation from Shri Ram College, which is the most prestigious college in this country. I don't think I also need to share with you that he has written more than 25 books on direct taxes, and he has delivered more than 3,200 lectures. And I don't think I need to even say this, that he has been nominated as a member of the task force for redrafting of the Income Tax Act by the government in 2019. And he was also a member of the High Court Committee under Justice A.P. Shah to deal with the applicability of MAT provisions for foreign companies. He was also nominated as an independent director of State Bank of India. But I think what I must share with you is that he has passed his CA exams way back in 1970, but has gone ahead and done his PhD in 2009. That means the love, the passion that he has for education and constant learning is that after 39 years of his qualification as a chartered accountant, he has gone ahead and done his PhD. Sir, salute to you. Friends, I have had an opportunity of working along with Girish Ahuja ji, not only on the institute platform, but also on the board of State Bank of India as an independent director. And in this span that I spent time with him together, it was indeed a very enlightening experience for me. And I learned and picked up a lot of qualities from him as far as this particular assignment of working in the bank is concerned. I remember, sir, way back, almost a decade back, I was at WIRC in some program, and Girish ji was to speak on capital gains, and it was our regional conference size program. And as organizers, we are very accustomed to seeing speakers coming up with their papers and the also keeping handily the Income Tax Act and the Income Tax rules available, so that in case there is anything specific that one needs to look into, you would have the Income Tax Act and rules handily available. But when we went on the dais, I saw that Girish Ahuja ji did not have a single piece of paper in front of him, no book, no nothing. I thought maybe his bag is somewhere else and possibly he is going to pick it up at a later point of time. And then when his turn came to speak, he just got up from his chair and went to the dais and started speaking freely without a single piece of paper in front of him. And I was absolutely astounded that here is a man who was speaking about not only the sections of the Income Tax Act, but the subsections and the provisions, specifically giving numbers. I think it's the craziest thing that I would have seen in terms of, for a topic like direct tax, if you don't have any paper in front of you and speaking off the cuff,
It's absolutely brilliant. And I've seen that happening so many times thereafter. It's a wonderful experience to deal with him, to hear him. And I think the knowledge and wisdom he has imparted to the entire fraternity is invaluable. But most important, that even after all this, after being a maven in his knowledge undertakings, he is the epitome of humility. He is always available to every person in this particular fraternity, and wherever we call him, he is always willing to help, be it the institute, be it any wing of the profession, or be it any chartered accountant in his individual capacity. Sir, I think that spirit, that quality of your is extremely, extremely important, and I think all of us should learn from that, that how do we actually help the youngsters and the entire professional fraternity. In fact, friends, even for this program today, he had another pressing engagement, but he was so nice and gracious enough that he actually rescheduled that and other program to allow us to have this particular program. Sir Girishji, we are extremely thankful for you for Thank you. rescheduling the program and allowing us this opportunity to hear you. It's a With privilege, these few sir. words, Privilege, I sir. would like to welcome you and present Girish Ahuja ji to this August gathering. Welcome, sir. The floor is yours. Thank you. Thank you, Sanjeev ji. I'm told the convener of the JB Nagar Study Circle, Mr. Chintan Shah, and of course, the deputy convener is Mrs. Seema Mehta. The other gentleman sitting in front of course, the past Central Council member and independent director of State Bank of India, CA Sanjeev Maheshwari ji. We have WIRC member, also regional council member of WRC, Manish Gadia ji. And I have Krishnan Kumar ji in front of me. Ladies and gentlemen, let me tell you, I've been asked, well, Mr. Sanjeev Maheshwari rang me up that you should have a program that, and I had given a commitment, I agree. But there was a mistake committed by me also. I told them to reschedule it, they did not reschedule it. And then I got a call from Mr. Maheshwari that you have two programs at the same time. I said, I told them to change it, but now they have done it. Now the another program is at 2 o'clock. So I'm very safe. So there is absolutely no problem. I have sufficient time to talk to you. When whatever queries you have, you can always ask me. But yes, I'm going to start with now the Finance Act 2020. Let me tell you, first the bill was presented obviously on 1st of February 2020. Whenever a bill is presented, then it is given, it is put to the website. Of course, everybody can see that and give their suggestions, their comments also on this bill. And later on, while passing the bill in the Lok Sabha, the finance minister moves the government amendment. We call them as government amendment. Moves the government amendment in the bill which is already presented. Well, the minister sitting there, the member of parliament sitting there can also move amendment. Those amendments are put to vote, and after these are put to vote, if they are passed by the parliament, the Lok Sabha, then they are incorporated in the main bill. And after that bill is put to vote clause by clause. And once it is put to vote clause by clause, and later on it is passed, it is called still passed by Lok Sabha. Then that bill goes to Rajya Sabha. Well, Rajya Sabha has to pass that bill. There is no other alternative. After that bill is passed by the Rajya Sabha, it goes to the president to give its consent. And once the president gives its consent, it becomes a Finance Act. And it has become a Finance Act. I'm coming to now there. There are many sections in Finance Act which have been brought in for amendments, but I'll take up the most important sections. I don't want to waste my time on section 213A, that there is a definition of business trust where something has been deleted. I don't want to bring you for section 2 that there is a definition of Commissioner of Income Tax which did not include Director General of Income Tax or Director of Income Tax. That has also been included in that definition. I'm going to start with the most important thing, and that is residential status, section 6. I remember I was giving a webinar. It was not a webinar, it was a webcast that time. Webinar is the latest thing. I was giving a webcast from Institute on 1st of February in the evening. We always have that, a webinar in the webcast in the evening. And during that discussion, I was their speaker there also. During the discussion,
we got lot of queries. More than 400 queries were received from Gulf, that is from Dubai, from Kuwait, from other places. And everybody started saying to me, sir, what have you done? मैंने क्या किया है? Sir, you framed the income tax law, you had framed the income tax law. What kind of amendment is this? I said, listen to me carefully, and you will not find that difficult thing, sir. But sir, it is very difficult. I said, don't worry. I have already have a commitment to come to Dubai, to come to Kuwait. I went there to come to Kuwait, Dubai, or Qatar, and also Muscat. I will come there and explain to you the provisions regarding that. So there is nothing to worry. You are not affected to the great extent. I went there, no doubt. Personally, I went there and had seminars there also, all the 4 places. I didn't go to Bahrain because because we didn't have any treaty with the Bahrain. I said, you will be, there is a treaty, why are you bothered? He said, sir, nothing doing. We cannot take a residency certificate. It is very difficult to take a tax residency certificate and then go for treaty. Sir, this is not done. I came back and went personally to the chairman of the CBDT, requested him that, sir, this amendment which you have brought is putting a lot of people in trouble, and particularly those who are in the Gulf. And please do something about it. He said, what kind of a problem? I said, sir, it is not easy to take a tax residency certificate in those countries. And we have millions of people who are working in that country, those Gulf countries. You should take. Very kindly, he listened to me patiently and has made many changes now in Section 6. And now it is not that difficult. Let me explain you the amended section. The amendment was brought through government amendment. The amendment was brought through government amendment. I'm talking to you Section 6. I'll have to give that in detail. We have a section 6.1, talking about residential status of an individual. You all know that section, but I'll have to repeat to explain to you something. It is said individual is said to be resident in India if he has been in India for a period or periods amounting to all 182 days in the relevant previous year. I'll be fast here because you know that. If you have been in India for 182 days in the relevant previous year, you are resident in India. But if you don't satisfy the first condition, then you shift to the second condition. In the 4 preceding previous year has been in India for 365 days or more, and in the relevant previous year he is there in 60 days or more, he will be called resident in India. Only 60 days in the relevant previous year and 365 days in the preceding 4 previous year, he is treated as resident in India. But we have an explanation 1, which has 2 clauses. Explanation 1, clause A and clause B. What clause A says? In case of a citizen of India who lives in India for employment abroad, the period of 60 days and condition number 2, supra, shall be read as 182 days. Meaning by, if I want to leave this country and I'm a citizen of India, I can stay in India for 181 days. Even if I was here for 365 days, the 4 preceding previous year, I can stay here for 181 days without being called resident. And similarly, the condition with because a member of the crew of the Indian ship, that is clause A. I'm more concerned with clause B, which is because there is a change there. What is clause B? Clause B says, in case of a citizen of India, or now here it is, in case of a citizen of India or a person of an Indian origin, who is outside India, comes to India for a visit. Comes to India for a visit. Please note the word for a visit. The period of 160 days in condition number 2 shall be substituted by 182 days. This is the existing law which was there up to 31st March 20. That if you are a citizen of India or a person of Indian origin, you know who is a person of Indian origin. You are not holding an Indian passport. You are not a citizen of India. But either you were born in undivided India, or your parents were born in undivided India, or your grandparents were born in undivided India. Undivided India means India before 1947. If that is the position, if you are born before 1947 and you have left the citizenship of this country, you will be called a person of Indian origin. If you are born after 1947, then we will see the parents, both the parents. Any other parent is born in undivided India. Still you are person of Indian origin, although you are not a citizen of India. Suppose your parents were also born in undivided India after 1947,
no problem. Grandparents. Grandparent means 4 grandparents. Grandfather, dada, dadi, nana, nani. If any of them is born in undivided India, you are taken as a person of Indian origin. So now, if you are outside India, either you are a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India, comes for a visit to India, the period was raised from 60 days to 182 days. That means second condition was superfluous. If you are in there 182 days in the first condition, satisfied. Now, what is the change? Please try to understand now the change I wanted to tell you. Now, this clause B has been extended. 2 parts. I'll explain that. First thing, the same. In case of a citizen of India or a person of an Indian origin who is outside India, comes to India for a visit, the period of 60 days in condition number 2 shall be substituted by 182 days. ये तो पहले भी था, अब भी है. अब इसके आगे क्या कर दिया? And अब and continue कर रहे हैं. And in case of a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India, comes to India for a visit, whose total income, excluding the income from foreign source, exceeds 15 lakh, whose total income, excluding the income from foreign source, exceeds 50 lakh, the period of 60 days in condition number 2 shall be substituted by 120 days. Please note the word 120 days. ये 120 days कर दिया. क्या था? There are many people now who have shifted to a country outside India. They want to become non-resident of India. This started way back. And let's say, I remember Savraj Paul. Savraj Paul in 70s. Savraj Paul shifted to UK. But Mrs. Gandhi was taken as a sister of Savraj Paul. वो brother sister बने हुए थे. Savraj Paul said, now I have become non-resident of this country and I am in UK. But if I visit to India only for 60 days and in the 4 preceding previous 365 days, you will call me resident in India. And if I am a resident in India, I will have to pay tax on the foreign income also, although you may give us benefit of double taxation. But I will be called resident in India. So he requested Mrs. Gandhi that I should be allowed to come and stay in India or do some business here also. Besides doing there, I would like to come and help my country also. I would like to do business. So then that 60 days was raised at that particular time. From 60 days, it was raised to 90 days. Gradually, 90 days were raised to 150 days. And thereafter, 150 days were raised to 182 days. ये करा गया था, ये gradually करा गया था. Lekin what has really happened? People now trying to misuse this. They have become non-resident for different reasons. One reason they have become non-resident is that if they are happen to be resident in India, then they have to give the complete detail of their foreign assets and foreign accounts and beneficial interest in foreign because of the Black Money Act 2016 जो आया था. Black Money Act 14 को आया शायद. Black Money Act आया. उसमें कह दिया गया कि if you were given a chance that you declare your foreign asset, you declare your thing, pay tax on that at the rate of 60%, we will not ask any question. लेकिन कईयों ने एडवांटेज दिया, आया ही नहीं पैसा इंडिया में. Only minimal amount of 4,000 crore rupees people are keeping lot of money in Swiss bank and various other banks, you know that. So they wanted to bring this act. After this act was brought, income tax was amended and it was said that if you are a resident of India, in your return of income, you have to give complete detail of your foreign assets, your foreign banks, your interest in the foreign, if you are beneficiary in any year, you have to give complete interest. Now, the people have not declared their asset during the Black Money Act. They did not do it. Now they wanted to become non-resident. Because once you are a non-resident, you do not have to declare your foreign assets and foreign beneficial interest also in the return. Otherwise, you have to. So, कई लोग non-resident बन गए. इसलिए बन गए कि ताकि वो हमारी चीजों का पता ही न लगे. और कई लोग यहाँ से पैसा भी ले गए. अरे सर,
अब कहते हैं 182 डेज आप अब पैसा ले गए यहाँ से, और $1 मिलियन नॉन रेजिडेंट हर साल ले जा सकता है लिबरलाइज की, $1 मिलियन। अरे वो क्यों ले गए? ये ले गए इसलिए कि कुछ तो मनी लॉन्ड्रिंग से भी ले गए, कुछ यहाँ से ब्लैक मनी भी लेके गए। कितना करोड़ों अरबों रुपया इस कंट्री को लूट के ले ही गए। और आपको पता है अभी भी कई लोग बाहर बैठे हैं, मलिया बाहर बैठा है, मोदी जी बाहर, ये मोदी जी नहीं, ललित मोदी बाहर बैठा है, ये मोदी नीरव मोदी बाहर बैठा है, अरे कई और बाहर गए हुए बड़े बड़े हीरो हैं, सब बाहर चले, पैसा ले गए यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग। अब हमने कहा ये उस वक्त तो पर्पस है कि आप इंडिया में आएंगे, काम करेंगे, सिप करेंगे, अब तो यहाँ से आगे भाग रहे हैं। तो इसका पीरियड उन्होंने अब कह दिया, if you come to India for a visit, if you are a citizen of India or a person of India origin, you can stay here for 119 days, not more than 119 days. If you are here for 190 days, you are called resident in non-resident. तो 119 दिन आइए, 120 दिन से ज्यादा आएंगे तो एक और लॉ बनाया, वो मैं बाद में बात करता हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन 119 दिन तक रहेंगे तो नॉन रेजिडेंट। And if you are non-resident, you do not have to declare your foreign asset and you don't have to pay tax on your foreign income also. But if you are resident in India, not only you have to pay tax on Indian income, you are also supposed to pay tax on the foreign income, although you may get relief under double taxation agreement. But wait, now we have told them they have become non-resident. We have told them you can't stay here for more than 119 days. Rather, we had suggested 90 days. They have given the benefit of to 120 days because we told them that they are misusing. Now they say India is a corrupt country. अरे क्या है, आप करप्शन से तो पैसा लेके वहां गए, अब हमारा पैसा कमाया और वहां करप्शन से पैसा रखा हुआ है, अब आपको इंडिया करप्ट लग रहा है? बहुत बड़े आदमी है सर, आपको अब करप्शन नजर आ रही है सर। यहाँ पर पोल्यूशन बहुत है सर, पोल्यूशन तो आप ही ने फैला रखा था, जो इतना गड़बड़ किया आपने। तो हम तो चाहते थे आपको अगर इंडिया का रेजिडेंट बनना है, नहीं बनना है, नॉन रेजिडेंट बनना है, तो फिर हमारे को ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैसा तो ले जा चुके हैं। लेकिन रुकिए, फिर भी हमने 119 दिन कह दिया कि आप नॉन रेजिडेंट होंगे और आप इंडिया 119 दिन तक आइए। डोंट पे टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, डोंट डिक्लेयर योर फॉरेन एसेट, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू। बट मोमेंट यू आर हियर फॉर 120 डेज, रुकिए, उसमें लिखा है योर टोटल इनकम excluding the income from foreign source should exceed 15 lakh. अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है फिर तो आप 181 डेज आ सकते हैं। 15 से ज्यादा कौन सी टोटल इनकम लेनी है? पहला टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम होता है, एग्जेंट इनकम निकाल देते हैं, टैक्सेबल इनकम होता है। और उस टोटल इनकम में आपको 2 इनकम लेनी है फॉरेन की, बाकी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नहीं लेना, बट 2 फॉरेन इनकम लेनी है। वन इज income from a business outside India which is controlled from India. Business outside India कर रहे हैं, लेकिन that business is controlled from India. Income from a profession outside India, अब बाहर प्रोफेशन कर रहे हैं, but it is that profession is set up in India. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं थ्रू दी यू आर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और आपको कोई फॉरेन असाइनमेंट है, आप वहां पर भी प्रोफेशन कर रहे हैं, कंसल्टेंसी वर्क दे रहे हैं फॉरेन कंट्री, तो हम क्या कह रहे हैं? इट इज ए प्रोफेशन विच इज सेट अप इन इंडिया। ये 15 लाख में जोड़ना है, और बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये 15 लाख में जोड़ना है, बाकी इंडियन इनकम जोड़नी है। इंडियन इनकम कौन सी होती है? Income received in India or deemed to be received in India, incomes accrue or rise in India, deemed to accrue. Income accrue outside India नहीं लेनी, except 2 income बाहर की लेनी। Income from a business outside India but controlled from India, income from a profession outside India set up. ये सब मिलाकर 15 से ज्यादा है तो आप 119 दिन आ सकते हैं। ये मिला अगर 15 से कम है तो आप 181 डेज आ सकते हैं। जब आप 119 देखेंगे तो पिछले 4 साल का 365 भी देखेंगे, 365 डेज, बिकॉज जब 182 डेज हो जाते हैं फिर 365 देखने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू आर हियर फॉर 190 डेज, 120 डेज, तो 365 डेज भी देखना है। ये बोल दिया, लेकिन इसके बारे में मैं दोबारा भी आऊंगा। ये तो कर दिया पहला चेंज, दैट इफ यू आर ए नॉन रेजिडेंट but you are liable to pay tax outside the country and your total income in India, including those 2 foreign income, exceeds 15 lakh, you can come to India and stay here for 119 days
without being called resident in India. अब आइए दूसरा पॉइंट. रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, मैं बता दूंगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो बाद में भी लूंगा. अब आइए 61A, एक नया सेक्शन डाला है, सब सेक्शन डाला है. जरा वर्ड सुनिए क्या है. Notwithstanding anything contained under section 61. 61 में क्या लिखा है? 61 में 182 days, 4 preceding previous 365 days in the relevant previous 60 days. या conditions भी तो हैं वो दो स्पेशल, वो जो explanation है कि आप इंडिया में 181 दिन आ सकते हैं या 120 दिन, कहता है notwithstanding that. वो explanation भी भूल जाइए, section भी भूल जाइए. section 1, notwithstanding anything contained under section 61, a citizen of India who is outside India, whose total income, excluding the income from foreign source, exceeds rupees 15 lakh, he shall be deemed to be resident in India. He shall be deemed to be resident in India if he is not liable to pay any tax in a foreign country by reason of his domicile or reason of his residence or criteria of similar nature. क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए. आप फॉरेन कंट्री में हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, फॉरेन कंट्री में यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि उस कंट्री में एग्जेम्प्ट है. या आप घूमते ही रहते हैं, किसी कंट्री में रेजिडेंट बनते नहीं. आप फॉरेन कंट्री में हैं और यू आर, आप दुबई में इनकम टैक्स नहीं है. आप कुवैत में, वहां इनकम टैक्स नहीं है. आप मस्कट में, वहां इनकम टैक्स नहीं है. आप कतर में हैं, वहां इनकम टैक्स नहीं है. आप बहरीन में हैं, वहां इनकम टैक्स नहीं है. आप किसी और कंट्री में हैं, लेकिन वहां के रेजिडेंट, वहां पर आप हैं और वहां टैक्स नहीं दे रहे. सर अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो फिर इस सेक्शन में नहीं आएंगे 61A में. फिर तो वही वाला है एक्सप्लेनेशन बी. यू आर नॉट पेइंग टैक्स बाय रीजन ऑफ हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल or criteria of similar nature, and your total income, taxable income, exceeds 15 lakh, excluding the income from foreign source. Foreign source की income नहीं लेनी, लेकिन दो foreign source की income लेनी है. One, income from a business outside India but controlled from India, or income from a profession outside India but set up in India. ये दोनों income लेकर plus Indian income लेकर, if it exceeds 15 lakh, तो आप फॉरेन कंट्री में हैं जहां टैक्स नहीं है या देते ही नहीं, उसमें है ही नहीं, तो उस केस में आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे. सुन लीजिए, एक दिन भी इंडिया नहीं आए तो भी डीम्ड रेजिडेंट हैं. एक दिन भी इंडिया नहीं आए तो भी डीम्ड रेजिडेंट होंगे. अगर आप गल्फ में हैं, आप दुबई में हैं, आप बहामा में हैं, आप व्हाट कॉल केमन आइलैंड में हैं, वहां टैक्स नहीं है. केमन आइलैंड, बहामा, बरमूडा में हैं, आप दीज कंट्रीज में हैं, वहां टैक्स नहीं है. आपका अगर 15 लाख से ज्यादा इंडियन इनकम प्लस 2 फॉरेन सोर्स इनकम है तो आप डीम्ड रेजिडेंट बन गए, चाहे इंडिया में एक दिन भी नहीं आए. आप कहेंगे ये कौन सा तरीका. और सर अमेरिका में भी यही तरीका, यूएसए में. इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ यूएस और यू आर होल्डिंग ग्रीन कार्ड ऑफ यूएस, you are deemed to be resident of US, come what may, whether you were there in US even not even for one day, तो भी आप US के रेजिडेंट माने जाए. हम US से कम थोड़ी हैं. हमने भी कह दिया अगर फॉरेन कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे ड्यू टू योर डोमिसाइल और वो, कोई चिंता मत करना, घबराना नहीं, उनको मैं बताऊंगा, कोई नुकसान नहीं. और वो अगर इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे. इंडिया की इनकम है वो दो जोड़कर. अगर वो 15 से कम है तो वैसे ही दिक्कत नहीं, तो आप कोई टैक्स नहीं देना. यहाँ पर सिर्फ इंडियन इनकम पे देना है. वो इंडियन इनकम पे तो सबको देना पड़ता है, चाहे नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है. इंडियन इनकम पे तो देना ही पड़ता है, लेकिन आपको इसमें देना पड़ेगा पूरा टैक्स. लेकिन ट्रीटी है, बाद में बताऊंगा. 15 से अगर ज्यादा है ठीक है, 15 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 15 लाख इंक्लूडिंग इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम 2 फॉरेन सोर्सेस, तो आप क्या माने जाएंगे, डीम्ड रेजिडेंट. लेकिन घबरा क्यों रहे हो, अभी मेरी बात को सुनिए. रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया.
एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी। तो वो, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। यू नो दैट a non-resident does not have to pay tax on foreign income. अगर वो आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट तो इंडिया में फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना, सिर्फ इंडियन इनकम पे देना है। और इंडियन इनकम पे भी ट्रीटी की वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कम रेट पे टैक्स लग सकता है। अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो और बाहर के रेजिडेंट हो, अगर हमारा उस कंट्री के साथ ट्रीटी है तो इंडियन इनकम भी कई बार कंसेशनल रेट पे टैक्स लगता है। काफी इनकम है जो कंसेशनल रेट पे टैक्स लगता है, जैसे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अरे और भी कई, रॉयल्टी इनकम, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इनकम, इंटरेस्ट, ये सब कंसेशनल रेट पे टैक्स लगता है अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और फॉरेन कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी है। लेकिन रुकिए रुकिए जरा ध्यान से सुनते हैं। आप रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए तो पूरी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि फॉरेन इनकम पे टैक्स लगा तो हम उसका रिबेट दे देते हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ इफ यू हैव पेड टैक्स इन दैट कंट्री आल्सो। अब आया नॉट ऑर्डिनरी। इफ यू आर ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो पता है क्या चीज है, आपको इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही देना है। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और राइज इन इंडिया, डीम्ड। एक और इनकम पे देना है, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और ए प्रोफेशन विच इज आउटसाइड इंडिया बट विच इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। अगर वो प्रोफेशन इंडिया से सेटअप है तो नॉट ऑर्डिनरी को उस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। और वो इनकम बिजनेस से, फॉरेन से है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को उस पे टैक्स देना पड़ता है। बाकी फॉरेन इनकम पे नहीं देना पड़ता, सिर्फ उन दो इनकम पे देना पड़ता। तो दुबई वालों या ये वालों, अगर वो रेजिडेंट हैं कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेक्शन 6(6) में डिफाइन किया हुआ है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो पहला था वो अभी भी है, that you are resident in more than one previous year you are resident in more than one previous year out of 10 preceding previous year immediately preceding the relevant previous year. पिछले 10 सालों में एक से ज्यादा बार आप रेजिडेंट हैं, and you were in India for 730 days or more in the 7 preceding previous year immediately preceding the relevant previous year. दोनों कंडीशन कैटिफाई करें तो ऑर्डिनरी होता है, दोनों में से एक करें या दोनों ना करें तो नॉट ऑर्डिनरी। ये कंडीशन रखी है, लेकिन आप सुनिए क्या किया है। इफ यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 6(1)(a), अगर आप 6(1)(a) में कवर्ड हैं, क्या मतलब आप डीम्ड रेजिडेंट हैं, तो लॉ ने कह दिया फॉर यू शैल बी ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। डीम्ड रेजिडेंट तो हैं लेकिन फिर भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, ऑर्डिनरी नहीं माने जाएंगे। चाहे एक दिन भी इंडिया आए या ना आए, चाहे 181 दिन आए, हम हमेशा आपको नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे अगर आप डीम्ड रेजिडेंट। मतलब 181 दिन आए, 182 आए तो रेजिडेंट में सभी हो जाते हैं। आप यू कम टू इंडिया, यू आर ए डीम्ड रेजिडेंट, कम एंड स्टे हियर, डोंट वरी, आप रह सकते हैं, लेकिन हम नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे आपको। नॉट ऑर्डिनरी क्या फायदा होगा नॉट ऑर्डिनरी माने का? हम आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे जो दुबई में कमाई, सिर्फ दो इनकम पे लगाएंगे, ए इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया विच इज सेट अप इन इंडिया, बाकी पे नहीं लगाएंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट होते तो ये दो भी छोड़ देते, क्योंकि आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी हैं, यही दो लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। अभी और भी सुनिए, और फायदा भी कराऊंगा डेट पर ही। अब एक और किया, जिनकी इनकम 1.5 लाख से 15 लाख से ज्यादा थी और वो आउटसाइड इंडिया थे और वहां टैक्स दे रहे थे, जो मैंने वो बताया था 119 डेज 120 डेज वाला, उनको क्या बोला? इफ यू हैव ए टोटल इनकम एक्सीडिंग 15 लाख एंड यू आर आउटसाइड इंडिया, you are a citizen or a person of Indian origin, you come for a visit to India, if you stay here, अब सुनिए, from 120 days to 181 days, 119 हो तो नॉन रेजिडेंट, 120 डेज से 181 रहे तो हम आपको क्या मानेंगे? नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे। ये सेक्शन 6 में डाल दिया है दैट ये लोग भी जो बाहर हैं, बाहर टैक्स दे रहे हैं, उनकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, ये लोग भी 120 डेज से लेकर 181 डेज रह सकते हैं। हम इनको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे,
उनको हम नॉन वो नहीं कहेंगे रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी। सो देखिए, जो दुबई वगैरह रहते हैं उनको भी हमने नॉट ऑर्डिनरी कह दिया, और इन लोगों को भी कह दिया कि 120 डेज से 181 डेज रहेंगे, 182 रहेंगे तो वैसे ही रेजिडेंट है, तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी होंगे। और अब एक और बात, इसके बाद भी एक और फायदा कराया, वो भी तो ध्यान से सुन लीजिए। ये तो हमने कर दिया, लेकिन हो सकता है आप इंडिया के रेजिडेंट हो। रेजिडेंट तो 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट। आप हो रेजिडेंट, ये भी तो हो सकता है आप फॉरेन कंट्री के भी रेजिडेंट हो, और उस फॉरेन कंट्री से हमारी ट्रीटी है। यू कैन बी रेजिडेंट ऑफ बोथ दी कंट्रीज। अगर एक कंट्री के रेजिडेंट हो तो हम ट्रीटी पढ़ते हैं, और जो जहां का रेजिडेंट होता है वहां टैक्स ज्यादा करते हैं, और नॉन रेजिडेंट को कोई बेनिफिट देते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आप दोनों कंट्री के रेजिडेंट हैं, तो क्या होगा? देखिए, उसमें टाई ब्रेकर रूल लगता है। कोई भी ट्रीटी पढ़ लीजिए, उसमें टाई ब्रेकर रूल, क्योंकि आप 2 कंट्री के रेजिडेंट तो आपको बनाना पड़ेगा एक ही कंट्री का रेजिडेंट, दूसरी के आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे, लेकिन आप तो दोनों कंट्री के रेजिडेंट। सर, आपने पीछे मैच देखा था 2020, अब तो बुढ़ापा आ गया कि 4 महीने से कोई देखा ही नहीं है, लेकिन उसके पहले न्यूजीलैंड में हमारी टीम गई थी, 2020 खेली थी, और 2 मैच टाई हो गए थे। रिमेंबर, 2 मैचेस वर टाई 2021। तो क्या किया था? टाई ब्रेकर रूल वाज अप्लाइड। व्हाट वाज द टाई ब्रेकर रूल इन दैट मैच? वो तो 2020 का टाई ब्रेकर रूल है, दैट यू प्ले अ सुपर ओवर, and if you play a super over and the team who scores the maximum in that super over will be treated as winner, उसको विनर कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे। और हमारी कंट्री ने दोनों मैच जीत लिए, लेकिन उसमें रूल है, इफ द टाई ब्रेकर में भी सुपर ओवर में the same runs are scored by both the teams, then you play another tie breaker, वही एक और सुपर ओवर। You keep on playing the super over till one country becomes the winner by scoring maximum marks, maximum score। इसी तरह इनकम टैक्स में भी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, उसमें टाई ब्रेकर रूल है। उस टाई ब्रेकर में रूल में लिखा जाता है आप किस कंट्री के रेजिडेंट होंगे। अगर दोनों कंट्री के रेजिडेंट है तो कहता है यू विल बी ट्रीटेड द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री वेयर यू हैव परमानेंट होम। आपका परमानेंट होम कहाँ है, वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर दोनों के रेजिडेंट तो ये एक का रेजिडेंट, दूसरी के ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, वेयर यू हैव परमानेंट। लेकिन ये भी तो हो सकता है यू हैव परमानेंट होम इन बोथ दी कंट्रीज। जैसे आप दुबई में भी घर है और सार्वा का सबका घर इंडिया में भी है, उनकी फैमिली भी यार रहती है, इंडिया में भी परमानेंट होम रखा हुआ है, वहां पर भी परमानेंट होम। तो कहता है फिर टाई हो गई, कोई बात नहीं, टाई हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टाई ब्रेकर रूल है वेयर यू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ है वो बताइए। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा दुबई में है तो आप दुबई के रेजिडेंट बन जाएंगे और आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। हमारी ट्रीटी है दुबई के साथ, हमारी ट्रीटी है कुवैत के साथ, हमारी ट्रीटी है मस्कट के साथ, आई मीन ओमान के साथ, हमारी ट्रीटी है कतर के साथ, हमारी है बहरीन के साथ नहीं, इन कंट्री के साथ है। लेकिन इस कंट्री के साथ ट्रीटी हमने कर ली है। अगर ट्रीटी है तो ट्रीटी देख रहे हैं। हमारी ट्रीटी हांगकांग के साथ भी हो गई, हम ट्रीटी देख रहे हैं। कहां पर आपको आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वहां है तो यहाँ के नॉन रेजिडेंट, यहाँ है तो वहां के नॉन रेजिडेंट। ये भी पॉसिबल हो सकता है परमानेंट होम भी दोनों जगह है और वेस्टेड इंटरेस्ट भी दोनों जगह है। तो तीसरा टाई ब्रेकर आता है वेयर यू हैव हैबिचुअल अबोर्ड। हैबिचुअली कहाँ रहते हैं? अगर हैबिचुअली अगर आप दुबई में रहते हैं तो ठीक है, आप वहां के रेजिडेंट, यहाँ के नॉन रेजिडेंट। हैबिचुअल अबोर्ड ठीक है, TRC लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। आप हैबिचुअल अबोर्ड कहाँ पर है वो कर लीजिए। ट्रीटी का अगर बेनिफिट लेना वो भी नहीं होता ट्रीटी में, तो फिर हम देखते हैं किस कंट्री के सिटीजन। सो कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर लगाकर अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन गए और फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट बन गए तो फिर तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडियन इनकम भी जो आई वो नॉन रेजिडेंट बन गए ना। चाहे आपको कहा गया था नॉट ऑर्डिनरी है, लेकिन आप तो नॉन रेजिडेंट बन गए ना, क्योंकि ट्रीटी की वजह से बने। वैसे तो रेजिडेंट थे, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, पर ट्रीटी की वजह से नॉन रेजिडेंट बन गए। अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो आपको फॉरेन इनकम का कोई टैक्स नहीं देना, इवन वो दैट बिजनेस का भी नहीं देना। एंड सेकेंडली सर्टेन इंडियन इनकम जो यहाँ पर टैक्स लगता है, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा, उस पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स देना है, कंसेशनल रेट देना है।
तो वो ट्रीटी में लिखा होता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में 120 दिन से 181 दिन भी रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है। आप डीम्ड रेजिडेंट हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद अगर डीम्ड रेजिडेंट हो भी गए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो हमने फर्दर ट्रीटी लगा ली तो उसमें तो आप बेनिफिट ही मिल गया। अगर ट्रीटी की वजह से आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन गए तो आपको वो इनकम पे टैक्स भी नहीं देना, रादर इंडियन इनकम पे भी कम देना। तो लॉ बहुत अच्छा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम इन सेक्शन 6, बट आई वांटेड टू टेल यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डोंट फील बैड कि मैंने अगर इतना टाइम ले लिया, मुझे एक्सप्लेन करना ही था, आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज आपने रिकमेंड करी थी कि जो डिविडेंड है अभी तक it is taxable in the hands of the company. There was a dividend distribution tax at the rate of 20% plus surcharge plus education, health and education cess. हाँ, कुछ केसेस में 115 BBDA में भी लगता था, if your dividend was more than 10 lakh aggregate amount, then on the amount exceeding 10 lakh, you are paying a tax in the hands of recipient at the rate of 10%. करते थे ना, ये तो था ना, कंपनी को छोड़कर 10% था। हमने रिकमेंड किया था अपने इनकम टैक्स जो एक्ट बनाया कि सर ये डिविडेंड शिफ्ट कर दो, किसके हाथ में? रिसिपिएंट के हाथ में, जो पुराना सिस्टम था। आपको बुरा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा था जब हमने रिकमेंड किया, क्योंकि अभी तक तो कंपनी 20% देती थी, 20 प्लस सरचार्ज जो भी था, जो भी 20 प्लस 12% प्लस वो, मुझे तो नहीं देना पड़ता था। अगर मेरा 10 लाख से कम था तो मेरे लिए तो एग्जेम्प्ट था। अब क्या होगा? अब मेरे हाथ में टैक्स लगेगा, चाहे 10 से कम भी हो, मेरे को तो टैक्स देना पड़ेगा 30% प्लस सरचार्ज। और मेरा सरचार्ज तो बहुत ज्यादा है, सरचार्ज तो 10 भी है, 50 से ऊपर हो, 15 भी है, 1 करोड़ से ऊपर हो, अरे 2 करोड़ से ऊपर हो तो 25% भी है, और 5 करोड़ से ऊपर हो तो 37%। मैं तो मर गया, मेरे को तो टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। पहले तो कंपनी देती थी, मैं देते नहीं था, मेरा 10 लाख से कम था डिविडेंड। अब 10 से कम हो या 2 रुपए हो, मुझे क्या मतलब है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं मान गया था, ये कहा था एक काम कीजिए, जितना भी डिविडेंड आता है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दीजिए 20%, ताकि 20% अगर आप लागू कर देंगे तो मुझे 80% मिलेगा, और 80% का 30% 24 होता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान होगा, हम मान जाते हैं, लेकिन कईयों को फायदा होने वाला है। किनको फायदा होने वाला है? एक तो उनको जिनका स्लैब रेट कम है, जो 5% स्लैब में आते हैं उनको कंपनी 20 देती थी, आपको नुकसान होता था। जो 10% स्लैब में आते हैं, जो अब तो कई स्लैब बन गए, 15 वाला भी बन गया, 20 भी बन गया, 25 भी बन गया, उनको तो फायदा होगा। वो तो दे विल पे टैक्स एट द लोअर रेट एज कंपेयर टू द कंपनी व्हिच इज पेइंग द टैक्स। लेकिन हमारा वो भी व्यू नहीं था, हमारा व्यू था फॉरेन का। FII यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, FPI यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्या होता था, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता था तो कंपनी डिविडेंड पे कर देती थी, उनके पास जो टैक्स आता, जो आती थी इनकम, वो एग्जेम्प्ट थी। एंड द मोमेंट इट वाज एग्जेम्प्ट तो टैक्स नहीं लगता था इंडिया में। लेकिन जब वो फॉरेन कंट्री में उनको टैक्स लगता है उस डिविडेंड पे, क्योंकि उस कंट्री में भी तो लगना है, वो रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री है, और इंडियन डिविडेंड पे वहां टैक्स देना पड़ता था, और उनको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। टैक्स क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता था, वो ये कहते थे आपने इंडिया में टैक्स थोड़ी दिया है, वो तो कंपनी ने दिया है, तो हम आपको किस बात का क्रेडिट। तो बेचारों को डबल टबलर गया, इधर कंपनी ने 20% दे दिया, उधर वहां जाकर उनको टैक्स देना पड़ रहा था। इसलिए वो ऑलरेडी प्रेशर डाल रहे थे, सर ये हटाइए। हमने अब टैक्स उनके हाथ में कर दिया। और एक और करा उनको फायदा, अगर उनके साथ ट्रीटी है तो ट्रीटी में तो डिविडेंड का रेट सिर्फ 10% है। अरे वो एक्चुअल रिसीट का नहीं है, 10 ही %। या कई कई कंट्री के साथ 5 है, तो इंडिया में सिर्फ 10% या 5% दे देंगे, बाकी टैक्स फॉरेन कंट्री में देंगे, और जो टैक्स उन्होंने इंडिया में दिया उसका क्रेडिट उनको वहां मिल जाएगा। हम तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमने ये बेनिफिट किया था। इसलिए 80 हमने सेक्शन 1034 में जो डिविडेंड आता था वो एग्जेम्प्ट था, 1034 अब हटा दिया, क्योंकि अब तो डिविडेंड हमारे हाथ में टैक्सेबल। हमारे पास 1035 जो यूनिट से आता था, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सेक्शन 1035 में वो इंटरेस्ट माफ था, उसको खत्म कर दिया 1034 एंड 35। और 115O में हमने कह दिया सारी इनकम पे टैक्स लगेगा। किसको? कंपनी को नहीं लगेगा,
वो 115O में भी डाल दिया कि 115O नहीं लगेगा। अब किसके हाथ में टैक्स लगेगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डिविडेंड को टैक्स करते इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। 115O भी खत्म हो गया, लेकिन इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट डिविडेंड विल बी टैक्स्ड। लेकिन मैंने तो 20% की डिडक्शन मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने एक डिडक्शन दी सेक्शन 57 में कि इफ यू बोरो द मनी and you pay interest on borrowing the money and you have invested that money in these shares, then any interest paid for the purchase of that share subject to maximum of 20% of the dividend shall be allowed as deduction. वाह भैया वाह, हमने तो लोन लेके कौन शेयर खरीदता है, आपने तो मार दिया। हमने तो कहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, मैं कोई लोन लेके शेयर खरीदूंगा? पहली बुरी हालत है शेयर की और मैं लोन लेके और मरना है। एक तो इधर से मेरा रिडक्शन हो जाए, उधर से इंटरेस्ट हो जाए। बट वट एवर मे बी, दैट डिडक्शन इज ओनली इफ यू बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर्स, you will be allowed a deduction subject to maximum of 20% of such dividend for interest amount. ये एक और करा सेक्शन 80M। अब डिविडेंड इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है। When a company receive dividend from another company, तो कंपनी को अगर डिविडेंड टैक्स देना पड़ गया और फिर कंपनी जब डिविडेंड बांटे तो दोबारा रिसिपिएंट को देना पड़ गया, फिर तो ये डबल टैक्स हो जाएगी। तो हमने इसको कंपनी को स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया और जो ओल्ड एक्ट होता था 80M वो दोबारा ले आए, लेकिन इसमें एक 3 चीजें ऐड कर दी और सिर्फ डिविडेंड नहीं। सुनिए क्या लिखा है। वेयर ए कंपनी रिसीव्स डिविडेंड और फ्रॉम अनदर कंपनी or received any dividend from a business trust or received dividend from a foreign company, 3 तरह के डिविडेंड ले लिए। डिविडेंड फ्रॉम ए बिजनेस ट्रस्ट, नंबर 2 डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी, एंड नंबर 3 डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी। If a company has received, if an Indian company has received dividend from these 3 companies, that dividend shall be exempt, shall be allowed as deduction to the extent it has been distributed to its shareholder as a relevant financial year. जितना डिविडेंड उसमें से बांट देंगे अपने शेयर होल्डर को, हम उतना आपको डिडक्शन 80M में अलाउ कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दिया तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगना, शेयर होल्डर को लगना है। अगर कुछ बचा लिया तो फिर आपको टैक्स देना है। अरे मैंने तो फॉरेन इनकम का भी कह दिया, फॉरेन डिविडेंड का भी कह दिया। पहले फॉरेन डिविडेंड टैक्सेबल होता था इंडिया में, सब्सिडरी से आया। अब तो फॉरेन का भी मैंने कह दिया रिसीव हुआ और उसको आपने बांट दिया तो आपको कोई डिविडेंड नहीं देना, शेयर होल्डर ने टैक्स देना है। वो तो आपको पता ही है, जो भी उसका रेट होगा उस हिसाब से वो देगा। So we have changed section 1034, we have changed section 1035, we have brought section 80M, we have changed section 115O, and we have introduced, due to this section, a TDS section 194. पहले था लेकिन वो तो applicable ही नहीं होता था। Now, if a domestic company distributed dividend to its shareholder, it will be at the time of paying the dividend or at the time of distribution or payment or whichever is earlier will deduct tax at the rate of 10%. Dividend distribution tax, dividend TDS काटेंगे, provided that the amount paid or credited by that company exceeds ₹5,000. 5,000 से कम डिविडेंड आया तो आप किसी कंपनी से इन ईयर तो टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 से ज्यादा आया तो टीडीएस रेट 10% है। वो छोड़िए, आजकल जो 25% हो गया वह बेकार, 10% है। इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, तो वो टीडीएस काटेगी कंपनी, पर नो डिडक्शन इफ द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड ₹5,000। वो तो है, वो हमने कर दिया। हमने लोअर रेट का भी कह दिया, अगर 197 में जाना चाहते तो ले लीजिए, 15G 15H देना चाहते तो दे दीजिए, वो अलग बात। लेकिन ये हमने आपको 194 सेक्शन में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। आइए, मैंने कई सेक्शन एकदम कर दिए। आइए, एक सेक्शन और है 1045। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर वगैरह होते थे, इनको कई अलाउंसेस और परक्विजिट्स
ये जो यूपीएससी के चेयरमैन और वो चेयर और मेंबर ऑफ द यूपीएससी, इनको ऑल अलाउंसेस एंड परक्विजिट एग्जेम्प्ट थे। ये सेक्शन 1045 ओमिट कर दिया गया है। अब यूपीएससी का चेयरमैन हो या वो हो, क्या कहता हूं, मेंबर ऑफ यूपीएससी हो, और दूसरा एक्ट चेंज करके इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको जितने भी अलाउंसेस एंड परक्विजिट दिए जाते हैं वो पूरे टैक्स कर। एक बड़ा अच्छा सेक्शन डाला, मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपके इंटरेस्ट का कम है लेकिन बता दूं। 1023FE, देखिए आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसकी सब्सिडरी से वो बाहर ये आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बाहर इन्वेस्ट करती है। और फॉरेन कंट्री में सॉवरेन फंड होते हैं, हर कंट्री में होते हैं सॉवरेन फंड। वो फंड्स वो इन्वेस्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्री में टू अर्न इनकम। हमारी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट होती है उनकी। तो हमने इस बार क्या कहा, मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रपोजल निकाला। मोदी जी ने कहा कि लुक हियर, यू आर ए सब्सिडरी ऑफ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। वहां पर सॉवरेन फंड नहीं कहते, सब्सिडरी ऑफ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और you are a sovereign fund of a foreign country. You are a sovereign fund. Come and invest in this country. You give us loan, come and invest give us loan, or come and invest in shares. अब जब लोन देंगे तो इंटरेस्ट होगा, शेयर देंगे तो डिविडेंड आएगा या यूनिट डिविडेंड आएगा, और जब शेयर बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग होगा तो होगा कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग ही होगा, मैं बताऊंगा क्यों। कैपिटल गेन होगा। तो अगर आप ये पैसा इंडिया में देंगे, कुछ कंडीशंस है, तो हम आपको उस इंटरेस्ट को फुल एग्जेम्प्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 1023FE। वो जो डिविडेंड होगा 1023FE में फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे, और उससे जो कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। कंडीशन नंबर 1, द इन्वेस्टमेंट इन शुड बी मेड on between 1st April 20 and 31st March 24। इस टाइम के पीरियड में आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 24। किसी ने मुझे पूछा सर ये 24 क्या है, बढ़िया ऑड फिगर है, 25 भी कर सकते थे, ज्यादा भी कर सकते थे। तो मैंने उनको बोला मोदी गवर्नमेंट की टर्म कितनी देर तक है, टर्म तो 24 तक ही तो है, फिर दोबारा इलेक्शन होने हैं। तो वो अपने टर्म के बीच में बोल रहे हैं, और दोबारा तो आ ही जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक नहीं आते तो 24। अगर आ जाएंगे तो हम एग्जेम्पशन दे देंगे, और अगर हम आगे दोबारा आ गए तो एक्सटेंड कर देंगे। अगर नहीं आए तो दूसरी गवर्नमेंट देके मुझे क्या लेने देना। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसको बोला, सब्सिडरी ऑफ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी and sovereign fund of foreign country, come and invest between 1st of April 20 and 31st March 24। 2, the lock-in period of that investment should be for a period of minimum 3 years। 3 साल तक लॉक इन पीरियड होगा, मतलब 3 साल तक लोन रहेगा, या 3 साल तक शेयर नहीं बेच सकते, तभी तो मैंने लॉन्ग टर्म कहा, और 3 साल तक आप नहीं कर सकते। और चौथा, थर्ड कंडीशन, you should invest either in a business trust or you should invest in an enterprise or a company which is engaged in the business of developing, maintaining and operating an infrastructure facility specified under ATIA 4 or any other which may be notified, or you may invest in alternative investment fund of category 1, जो हमारे यहाँ alternative investment fund है, of category 1 or an alternative investment fund of category 2, provided that 100% of that amount received by them is invested in these enterprises who are developing, operating an infrastructure facility or any other which may be notified। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, हम आपका इंटरेस्ट पूरा माफ करेंगे, हम आपका कैपिटल गेन भी माफ कर देंगे, और आपको डिविडेंड जो मिलता है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ये बहुत अच्छा सेक्शन है। lot of money will come to India under 1023FE। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आएगा, और अदर देन और भी बताएंगे, नोटिफाई करेंगे। तो एक अच्छा स्टेप है जो मोदी जी लाए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17। अब देखिए हेरा फेरी क्या हो रही है, ध्यान से। आपको पता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन,
is exempt up to 12% of salary of the employee. 12% तक माफ होता है employer's contribution. And interest on employer contribution is also exempt up to 9.5% per annum. सबको पता है salaried employee का. अब क्या हो रहा था, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सैलरी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है. वैसे तो प्रोविडेंट फंड तो छोटों के लिए था, लेकिन ये भी मेंबर हो सकते हैं. अब ये क्या कर रहे थे, 12% ऑफ लेट्स से 5 करोड़ कंट्रीब्यूट कर दिया. 60 लाख इन द ईयर. 12% 60 लाख होता है, और ये 60 लाख उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था. ये इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है जो 1.5 लाख तक है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ है. 60 लाख की एग्जेम्पशन ले लेते थे और कहते थे हमें पैसे करने के बाद में आ जाएगा. कंपनी को डिडक्शन मिल गई 12% की, और आपने 60 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया हर साल, और प्लस जो इसका इंटरेस्ट हर साल आता है 9.5%, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट था. तो इनडायरेक्टली ये बड़े लोग इतना इतना पैसे का बेनिफिट लिए जा रहे थे और कंट्रीब्यूट कर रहे थे एम्प्लॉयर का. कंपनी को डिडक्शन मिलती थी, लेकिन एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगता. अब मैं कई नाम नहीं लेना चाहता, कईयों की सैलरी तो 10 करोड़ भी है, 14 करोड़ भी है, और 12% भी हो गया तो सरकार को कितना नुकसान हो रहा था. अब क्या कर दिया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में जो परक्विजिट की डेफिनेशन है, वहां पर इन्होंने ऐड कर दिया आइटम नंबर 8 एंड आइटम नंबर 8A. क्या किया है, contribution by the employer, please note the word now, contribution by the employer to number 1 recognized provident fund scheme. Number 1 recognized provident. Number 2 contribution by the employer to national pension scheme as covered under 80 CCD1, जो 10% कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता है, 10%. 14% गवर्नमेंट करती है अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है. एंड कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर, ये तीनों मिलाकर shall be treated as perquisite to the extent it exceeds rupees 7,50,000 per year. मर गया बेचारा. 7,50,000 से ऊपर जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट है, वो सारा का सारा वो परक्विजिट मानकर उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा. मतलब वो जो 60 लाख था, 7.5 माफ कर दो, चलो छोड़ दो, सुपरएनुएशन नहीं था, पेंशन नहीं था, लेकिन वो तो 60 था, 52,50,000 रुपए उसकी सैलरी में जुड़कर उसको टैक्स देना पड़ेगा. अब 7.5 तक माफ है, तीनों मिलाकर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. नंबर 1 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, नंबर 2 नेशनल पेंशन स्कीम में जो 10% है, एंड नंबर 3 कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड जो पहले 1.5 लाख तक माफ था. ये तीनों मिलाकर 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है. एनी कंट्रीब्यूशन अबव 7,50,000 will be included as perquisite in the salary of the employee. और दूसरा जो इंटरेस्ट आया इस एक्सेस अमाउंट पर, 7.5 पे नहीं, 52 लाख पर हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसको भी टैक्स कर देंगे एज परक्विजिट. मर गए बहुत. अमीर आदमियों को तो मार दिया. अब 7.5 से ऊपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो टैक्स लग जाएगा आपको. तो बात तो वही होगी, पहले कंपनी को डिडक्शन मिलती थी और आपको टैक्स नहीं लगता था, ये टैक्स लग गया. ये 17(2) है, ये याद रखना, बहुत मुश्किल पड़ गई. अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया कि 44AB में आता हूं, फिर आपको बताता हूं. 43CA बाद में ले. 44AB का टैक्स ऑडिट है. बहुत लोग परेशान हैं, सर ये क्या करवा दिया आपने, ये 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ कर दी. पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर अंडर 44AD तो वो तो 2 करोड़ ही है, वो 5 करोड़ नहीं है. वो 2 करोड़ में वो मैंडेटरी है. 44AD प्रेजेंटिव इनकम मैंडेटरी है. अगर आप 44AD में नहीं जाएंगे, ये मैंडेटरी है. इफ योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ यू हैव टू शो 8% और 6% एज द केस में भी. अगर आप नहीं करेंगे तो यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स मेंटेन्ड एंड अकाउंट्स ऑडिट भी करना. अगर इफ योर टैक्सेबल इनकम, इफ यू हैव ए टैक्सेबल इनकम, तो अगर तो आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, फर्म है, 2 करोड़ से कम है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि 8 और 6% से कम दिखा रहे हैं,
तो टैक्स ऑडिट भी होगा और अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे। 8 से ऊपर है तो पहले भी ये था, लेकिन अब आया आप 44AD में कवर्ड ही नहीं है, लेकिन आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, तो कहते हैं जी टैक्स ऑडिट नहीं होगा। लेकिन रुक तो जाइए, कंडीशन क्या है? The aggregate amount, the amount received during the year, amount received, including the capital receipt, aggregate amount, the amount received, including the receipt on account of sale of goods or services, should not exceed 5% of the aggregate receipt. I mean, should not be received in cash. Should not be received in cash. That means not more than 5% of the amount of the actual receipt should be in mode other than cash. Should be in a mode in cash. That means 95% should be in a mode other than cash. Total receipt का मतलब capital receipt भी है। अरे शेयर का आप पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लाते हो, वो भी इंक्लूड होना है। गिफ्ट आती है, वो भी इंक्लूड होनी है। हाँ, बैंक से विड्रॉवल नहीं होनी, बैंक में डिपॉजिट नहीं होना, लेकिन कोई भी कैपिटल रिसीट है, कोई भी रेवेन्यू रिसीट है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, सब मिलाकर 95% शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश। मैक्सिमम 5% इन मोड इन कैश हो सकता है। एंड सेकंड कंडीशन, एंड 95% of the payment, including payment on account expenditure, should be in a mode other than cash. अरे सर, ये एक तो कंडीशन सेटिस्फाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे भैया, वो 1 करोड़ से 5 करोड़ वाला इतनी ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इससे अच्छा तो कहेगा ऑडिट ही करा लो भैया, थोड़े से पैसे लगते हैं, 10, 20, 50, 60 हजार, 1 लाख रुपया। यहाँ तो मेरे को क्योंकि ऑडिट मेरा होगा नहीं, तो एक तो मुझे पता नहीं लगेगा कोई गलती हो गई, और पता भी लग गया तो मैंने रिटर्न भरनी है, तो अंडरटेकिंग तो एओ को, आपको देनी है, एसएससी को, मुझे थोड़ी देनी है, मैंने तो सर्टिफाई किया ही नहीं है। तो मेरे उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। 95% इज इन ए मोड अदर देन कैश, 95% पेमेंट इज मोड अदर देन कैश, और वो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। फिर वो 40A3 में जो 10,000 वाला है, क्या करेगा भाई? तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि वो ऑडिट ना कराए, लेकिन इसके लिए 44AB चेंज किया गया। लेकिन 44AB में ये डाला गया, एक और डाला गया, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो पहले अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम होती थी। आपको पता ही है, अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर दिया? Audit report should be furnished at least 1 month before the due date mentioned under 139(1). 1 month before the due date mentioned under 139(1), audit report furnish करनी है। लॉ में क्या लिखा गया, अब एक्सटेंड हो गई, वो बाद में करते हैं। लॉ में लिखा गया अंडर 139(1), the due date for furnishing the return of income has been extended to 31st October for those who are going for tax audit। 31st October, टैक्स 31st अक्टूबर कर दिया गया, या कंपनी के केस में 31st अक्टूबर कर दिया गया। हाँ, वो अलग बात है, वो 92 उसकी रिपोर्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो 30 नवंबर है, अदरवाइज 31st अक्टूबर कर दिया गया। तो इसलिए ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 सितंबर कर दी गई। वो तो बाई चांस अब वो करी गई थी 20-21 की, वो तो अभी आया है लॉ, लेकिन वो भी अभी ऑर्डिनेंस नहीं है, आएगा कि 30 सितंबर को बढ़ाकर 31st अक्टूबर कर दिया, और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न 30 नवंबर कर दिया ड्यू टू कोविड-19। ये अभी ऑर्डिनेंस आएगा, ये तो प्रेस नोट है आपका, कर दिया गया है दैट इट विल बी लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट विल बी फॉर दिस ईयर। दिस ईयर मींस असेसमेंट ईयर 2021, ये चेंज 2021 से ही आ गया है, is 31st October, not 30th September, and last date of furnishing the return for all SSC, वो तो प्रेस रिलीज है ना, 30th नवंबर आ गया। लेकिन रुकिए, 1 महीना पहले देना है ऑडिट रिपोर्ट, नॉट अलोंग विद द रिटर्न। आप रिटर्न भरना चाहे भर दीजिए, लेकिन रिटर्न तो आप 1 महीना बाद में भी भर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन रुकिए, अगर टैक्स आपका वो होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का भी है, तो फिर उसकी रिपोर्ट भी जानी है, तो 30 नवंबर, वो 30 नवंबर है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर को देनी पड़ेगी। लेकिन एक एडवांटेज और कर रहा है, ये ध्यान से सुनना, 139(1) में पहले वर्किंग पार्टनर होता था तो टैक्स ऑडिट जरूरी होता था। अगर वर्किंग पार्टनर, सॉरी, टैक्स ऑडिट है और वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर की डेट भी
वो होती थी 30 सितंबर, लेकिन नॉन वर्किंग पार्टनर था तो कहते थे नहीं, आपको तो रिटर्न भरनी है 31 जुलाई तक अगर आपका कोई टैक्स ऑडिट नहीं। तो हम ये कहा करते थे सर जो फॉर्म हम भरते हैं रिटर्न में, वहां पर हमने शेयर कैपिटल अपनी वर्क कैपिटल देनी पड़ती है पार्टनर्स की, वो कैसे दे, क्योंकि ऑडिट तो अभी हुआ ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया है, वो वर्ड वर्किंग पार्टनर हटा दिया है। सो ऑल पार्टनर्स वेदर टैक्स ऑडिट और नॉट, ऑल पार्टनर्स, आपका टैक्स ऑडिट हो नहीं रहा, फर्म का अगर ऑडिट हो रहा है, ऑल पार्टनर वेदर वर्किंग और नॉट, उनके केस में ड्यू डेट वही होगी जो फर्म की है, दैट इज वही अक्टूबर जो अब नवंबर हो गई। ये याद रखिए, वर्किंग और नॉन वर्किंग, पहले सिर्फ वर्किंग पार्टनर की डेट एक्सटेंड थी, नॉन वर्किंग की नहीं होती थी उस फर्म की जिसकी ऑडिट होता था। लेकिन अब नॉन वर्किंग वर्किंग दोनों के लिए डेट एक ही कर दी है अगर फर्म का ऑडिट होता है। ये मैंने चेंज करा, मैंने 139(1) भी करा दिया, 44A भी करा दिया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि 44AB की लिमिट 5 करोड़ कर दी कई केसेस में, लेकिन आप जब टीडीएस के सेक्शन में आते हैं, इंडिविजुअल HUF आर सपोज टू डिडक्ट द TDS इफ they were subject to audit in the preceding previous year under section 44A and 44B। हम तो ये लिखा करते थे अगर वो पीछे 44A और 44B में कवर्ड है पिछले साल तो टैक्स उनको TDS इस साल काटना है। अब 44A और 44B की लिमिट एक ही तो बढ़ा दी, वो तो 5 करोड़ कर दी। तो इसलिए उन्होंने सारे सेक्शन बदल दिए, जहां जहां पर जैसे 194A, 194I, 194J, 194 कई सेक्शन थे, I, J, 194C, उन सब में जहां पर वो लिखा जाता था कि 44A और 44B, अब उन्होंने वहां मेंशन कर दिया, if your turnover of the preceding previous year, if you are carrying on a business exceed 1 crore or you are carrying on a profession exceeds 50 lakh। पहले ये लिमिट नहीं होती थी, पहले होता था ऑडिट अंडर A और B ऑफ सेक्शन 44AB, लेकिन क्योंकि ये 5 करोड़ हो गया इसलिए उन्होंने अब क्लियर मेंशन कर दिया क्वांटम कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में है, आप इंडिविजुअल HUF हैं, या लास्ट ईयर आपका आप प्रोफेशन कर रहे हैं, 50 लाख से ऊपर ग्रॉस रिसीट है, तो यू विल हैव टू डिडक्ट TDS, नॉट क्वेश्चन ऑफ 44A और B। ये क्लियर हो गया। तो मैंने ये कई सेक्शन में चेंज किया है, 194A में चेंज किया, 194C में चेंज किया, 194I में चेंज किया, 194J में चेंज किया, कई सेक्शन में चेंज हुआ है, 194H में चेंज किया, कमीशन वाले में भी, उसमें भी चेंज। ये सारे सेक्शन कॉन्सिक्वेंटली चेंज हुए बिकॉज ऑफ दिस 5 करोड़। मैं वापस आ रहा हूं, आइए, और भी कई सेक्शन चेंज हुए हैं, 32A, 35AD, जहां जहां टैक्स ऑडिट का वर्ड लिखा होता था वहां पर भी सारे सेक्शन चेंज हुए। अब आइए 43CA में। आपको पता है अगर आप स्टॉक इन ट्रेड, आपका लैंड और बिल्डिंग, एंड इफ यू ट्रांसफर दैट स्टॉक इन ट्रेड, आपको वो स्टैम्प ड्यूटी प्राइस पर ट्रांसफर करना पड़ता है, यू हैव टू ट्रांसफर एट द स्टैम्प ड्यूटी प्राइस, 43CA में लिखा है। लेकिन आपको याद होगा उसमें हमने कंसेशन दे दी थी 5% की, दैट इफ योर एक्चुअल कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, आपका एक्चुअल कंसिडरेशन 105% डज नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो उस केस में आप एक्चुअल कंसिडरेशन ले सकते। 5% का मार्जिन दे दिया था, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 100% पर 5% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, 105%। अब 5% को बढ़ाकर 10% कर दिया, दैट योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 100% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन प्लस 10% ऑफ द सेम। तो उस केस में आप एक्चुअल कंसिडरेशन ले सकते, तो मार्जिन 10% का दे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है और आपने 92 लाख का बेचा, 92 लाख प्लस 10%, 9.2, 101 पॉइंट, वो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड। तो इस केस में अगर आप 92 करोड़ भी दिखाएंगे तो आपको कोई 43CA भी नहीं लगेगा, 50C भी नहीं लगेगा अगर आपका कैश कैपिटल एसेट है, और 56(2)(10) भी नहीं लगेगा अगर आप परचेजर है। सो सेलर के लिए अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो 43CA होता है, आप और मेरे लिए अगर कैपिटल एसेट है तो 50C लगता है सेलर के लिए, एंड बायर के लिए चाहे वो 43CA वाला है या 50, बायर के लिए 56(2)(10) लगता है। तीनों जगह
10% का आपको मार्जिन दे दिया गया, 10%। तो मैंने 43 CA भी कर दिया, 50 C भी कर दिया, 50C to 10 भी कर दिया, जो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अमेंडमेंट हमने कर दी। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज, तो टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने टाइम बहुत लगा दिया उस नॉन रेजिडेंट, कोई बात। नेक्स्ट चीज 80 सेक्शन में आइए। 80 सेक्शन डाला था कि यू कैन टेक ए अफोर्डेबल हाउस by taking a loan of 45 lakh, but acquired should be between 1st April 20 to 31st March 2020 अप्रैल 31 मार्च 20 तक था, 19 से लेकर 31 मार्च 20, उसके बाद नहीं था। अब उन्होंने कह दिया लोन यू कैन टेक ए लोन शुड बी सेक्शन बिटवीन 1st मार्च 19 अप्रैल 19 टू 31st मार्च 21, एक साल बढ़ा दिया गया है। आप अफोर्डेबल हाउसिंग का लोन ले लें और जो इंटरेस्ट होगा हम आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन देंगे, इन एडिशन टू द डिडक्शन विच इज अलाउड अंडर 24B। जो ऊपर 2 लाख मिलती है उसके ज्यादा भी देंगे, ये एक्चुअल मिलेगा। ये एक साल बढ़ा दिया गया, लेकिन क्यों बढ़ाया गया मैं आपको बताता हूँ। इसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे। न्यू रिजीम में जाएंगे इसका कोई फायदा नहीं। मैंने ATM भी कर दिया है आपको, वो तो आपको पता ही है। आइए जरा आए, अब थोड़ा सा वापस आए। एक तो मैं पुराने सेक्शन ले रहा हूँ 115BAA और 115BAB, याद है वो टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ से आया था। The company can pay tax at the rate of 22% plus surcharge 10% plus education tax 4% amounting to total 25.17% या 168%. And a new company which is incorporated on or after 1st October 2019 can pay tax at the rate of 15% if certain conditions are satisfied. Manufacturing company नहीं आए if certain conditions are satisfied. बोला था, लेकिन साथ में ये भी बोला था certain if you follow pay 22% और 15%, एक तो मैट नहीं मिलेगा, मैट नहीं लगेगा, मैट खत्म कर दिया था। और साथ में मैट क्रेडिट जो पुराना पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, मैट क्रेडिट पुराना पड़ा है खत्म हो जाएगा। साथ में ये भी कह दिया था आपको कई डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी? ना कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलेगी, ना ही 30 एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी, ना ही कोई पास्ट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का वो मिलेगा, ना ही 10A मिलेगा, ना ही ATIA, ATIB, ATI, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपको बोला गया था अगर याद हो तो, लेकिन उसमें बोला था 80JJAA मिल जाएगा, लेकिन अब तो 80MB आ गया। लेकिन रुकिए, उसके साथ पहले बोला था कि 80IA से लेकर 80IA से लेकर ऑनवर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन 80C to 80 वो मिल जाएगी, ये बोला गया था। 80C से लेकर 80 जो भी GGB तक आती है, जैसे आपकी डिडक्शन है कंपनी को 80G डोनेशन की मिल जाएगी, 80GGA पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की मिल जाएगी, ये कंपनी को कहा था मिल जाएगी। लेकिन जब एक्ट आया ये फाइनेंस एक्ट, उसमें कह दिया नहीं नहीं, बैकडेट से कह दिया 80G भी नहीं मिलेगी, 80GGA भी नहीं मिलेगी, 80GGB भी नहीं मिलेगी। ये कह दिया था, गवर्नमेंट अमेंडमेंट में भी कह दिया, ये कह दिया था। लेकिन बाद में कोविड आ गया, अब इनको लॉ चेंज करना पड़ा, तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट में लिख दिया कि देखिए 80C to 80D अगले साल से नहीं मिलेगी, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 से नहीं मिलेगी, 1920 में मिल जाएगी। कौन सी? 80G। पहले अमेंडमेंट ले आए, फिर इसको शिफ्ट कर दिया 115BAA में और BAB में, सेइंग दैट 80C to 80G जो भी अवेलेबल आपको है कंपनी को, दैट विल बी एलिजिबल टू यू इन 1920। और साथ में ऑर्डिनेंस में भी लिख दिया अगर 30 जून तक पेमेंट कर देंगे और CSR को भी कर देंगे तो हम डिडक्शन दे देंगे। किसको? जो कंपनी 22% में आ रही है, 15% में आ रही है। पहले तो कह दिया था ये डिडक्शन मिलनी ही नहीं है प्रीवियस ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 2021। अब ये अलाउ कर दी कोविड की वजह से, रादर जून तक पेमेंट करके पीछे ले लो। तो ये अमेंडमेंट आई। अब एक नई अमेंडमेंट आई। क्या अमेंडमेंट आई? नई स्कीम इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF 115BAC न्यू रिजीम। क्या बोला गया? that if you are an individual in HUF, you are entitled to opt to pay tax in the following manner. If you are individual HUF,
resident in India, you can pay tax in the following manner. Resident word नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया. You can pay tax in the following manner. On first 2,50,000, nil. On next 2,50,000, how much? 5%. On next 2,50,000, 10%. On next 2,50,000, 15%. On next 2,50,000, 20%. On next 2,50,000, 25%. On above 15 lakh, 30%. But you will be allowed to pay tax in this manner, provided the condition mentioned under section 115 BAC subsection 2 are satisfied. बेड़ा गर्क कर दिया वहां पर, कह दिया आपको हम बेनिफिट दे देंगे. 75,000 रुपए का बेनिफिट है अगर 15 लाख तक का आपका है पुरानी स्कीम से. लेकिन बेड़ा गर्क क्या कर दिया, सुनिए. इफ यू आर ए सैलरीड एम्प्लॉय and you are opting for 115 BAA नंबर 1, जो 10 सेक्शन 10(5) में लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता था, वो फुल्ली अब वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसको टैक्स कर देंगे. लीव ट्रेवल अलाउंस और लीव ट्रेवल कंसेशन और लीव ट्रेवल असिस्टेंस. नंबर 2, जो सेक्शन 10(13)A में आपको HRA देते थे एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन देते थे? एक्चुअल HRA रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% द सैलरी, 40% सैलरी और 50% द सैलरी एज द केस में भी, वो भी एग्जेम्पशन खत्म कर दें. अरे 10(13)A भी खत्म. वो 10(14) में जो स्पेशल अलाउंसेस मिलते थे पर्सनल वाले, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और लंच, वो जो जितने भी थे, वो 50 रुपए का मील, अरे सब खत्म. इवन जो 10(14)I के जो वो वाले हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, उसको भी नोटिफाई करेंगे कौन से माफ. बाकी पर्सनल जितने भी थे, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो पहले ही मना कर दिया था. अरे हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, सारे खत्म कर, वो भी खत्म. 10(14) भी खत्म. और सुन लीजिए, सैलरीड एम्प्लॉय को कहते हैं तेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी खत्म. 50,000 वो भी गया. अरे सुन, तेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, तूने लोन लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिलेगा. वो जो 2 लाख मिलता था अब वो भी नहीं मिलेगा. जब 2 नहीं मिलेगा तो 80EE में क्या मिलेगा भाई? वो भी नहीं मिलेगा. अरे सुन ले, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, मतलब सब मिलाकर वो लॉस किसी और हेड से सेटअप भी नहीं होगा. अबे भैया क्या दोगे? कुछ नहीं दे. अरे जो डिडक्शन है 80C से लेकर पूरी, कोई डिडक्शन चैप्टर 6A की नहीं मिलेगी. क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. सिर्फ ये टैक्स, इनकम कमाओ और टैक्स दे. मर गया बेचारा. मेरे जैसा आदमी या कोई भी लोग, सैलरीड को पहले लेता, मैं सैलरीड आदमी नहीं हूं, 1.5 लाख रुपया वो प्रोविडेंट फंड में वगैरह में डिडक्शन लेता था. 50,000 रुपया उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती थी. 2 लाख हो गया. HRA कई बार कितना अमाउंट मिल जाता था, HRA भी खत्म हो गया. उसको सपोज करो HRA का बेनिफिट मिल जाता था 70-80,000, वो भी गया. अरे लीव ट्रेवल कंसेशन 2 जर्नी ने ब्लॉक ऑफ 4 ईयर मिलता था, वो भी गया. अरे हाउस, अगर उसका घर था तो 2 लाख रुपए की वो मिल जाती थी, वो भी गया. कोई लॉस आ गया वो भी सेटअप नहीं होगा. अरे आपने जो 80D में मेडिकल देते थे वो भी गया. अरे आपने 80EE वो भी गया. अरे 80G डोनेशन भी गई. तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. चुपचाप टैक्स दे दे. भैया इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये तो आपको देखना है कि क्या आपका था. मेरा जैसा आदमी तो बुरी तरह मारा गया. मेरा तो 80 QQB में भी 3 लाख का वो डिडक्शन मिलती थी बुक राइटिंग की. अरे 3 लाख वो चला गया. 1.5 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन चला गया. 4.5 80C चला गया. 4.5 अगर मैं जाऊं तो 50,000 रुपया मेरा वो चला जाता है. क्या 80D 4.5 50, क्योंकि सीनियर सिटीजन को 50 तो एक्चुअल खर्चा मिलता है. 5 लाख हो गया. अरे 50,000 वो भी है. अगर मैं कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम करना चाहता हूं तो वो भी चला गया. अरे भैया मेरे को तो मर गया. 4,50,000 या 5 लाख. और 80TT भी, अरे वो भूल गया, 50,000 रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, वो भी चली गई. अरे 5 लाख चली गई. 5 लाख पे 1.5 लाख प्लस सरचार्ज, इतना फायदा होता था. 75 दे दोगे मेरे पे, आसान करो. लेकिन कईयों को हो सकता फायदा हो. आपको चूज करना है. लेकिन रुकिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम है तो आपको एक ही बार डिसाइड करना है. आज कर लो, अगले साल कर लो, कभी भी कर लो, कि आपको किस स्कीम में जाना है, ओल्ड में कि न्यू में. ओल्ड में जाने के लिए ऑप्शन नहीं देनी, न्यू में जाना है.
अगर आपने ऑप्ट कर दिया तो फ्यूचर में भी फिर नई में रहेंगे, वापस नहीं आ सकते। हाँ, एक बार वापस अलाउ कर देंगे, फिर दोबारा नहीं जा सकते। ये तो बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है, योर टोटल इनकम इंक्लूड। हाँ, योर टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उस केस में आप हर साल ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। इस साल आप नई में चले जाओ, अगले साल पुरानी में आ जाओ, इस साल पुरानी में रहो, अगले साल नई में चले जाओ, फिर अगले साल पुरानी में आ जाओ। लेकिन आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, लगा ही रहेगा। और वो एम्प्लॉयर भी कहेगा मुझे तो बता कहाँ जाना है तूने, मैंने तो तेरा टीडीएस काटना है। ओल्ड में जाना है तो ओल्ड के हिसाब से काटू, नए में जाना है तो नए के हिसाब से काटू। अरे बता तो दे मेरे भाई मुझे। तो बात समझ रहे हैं? ये वो कहेगा मैं तो बताऊंगा जब मैं रिटर्न भरूंगा, और रिटर्न से पहले आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी। सर ऐसा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है 115BAA में, लेकिन फिर भी कईयों को हो सकता है फायदा हो। अरे 5 लाख वालों को तो वैसे ही फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें सीनियर सिटीजन को खत्म, कोई 2.5 लाख ही माफ है। इसमें जो वो 50 लाख जो 80 साल से ऊपर थे उनको भी 2.5 माफ मिलेगा, मर गए बेचारे, उनको तो 5 माफ होता था। और जिसकी इनकम वैसे ही 5 लाख है, 87A में वैसे रिबेट मिल जाती है 5 लाख की फुल, तो उसको तो कुछ मिलता ही, टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, पर जिनको हुआ वो ले सकता है। एक और सेक्शन डाला गया 115BAB, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह रहे थे कि आपने कंपनियों को कर दिया रेट 22%, हमें तो नहीं किया, हमें भी कर दो। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट अगर टैक्सेबल है तो वो क्या है, पहला 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। तो इनको भी ऑप्शन दे दी कि आप चाहे तो आप भी ऑप्ट कर लीजिए अगर 115 में। लेकिन अगर आप ऑप्ट करेंगे तो चैप्टर 6A की रिडक्शन नहीं देंगे, फिर नहीं देंगे, फिर तो आपको इसी रेट पे लेना पड़ेगा। तो क्या फायदा है, देख लीजिए, आपके ऊपर है। ये आ गया, हमने आपको 115BAD भी बता दिया और BAC भी बता दिया। नेक्स्ट चीज, डिविडेंड का तो बता ही चुका हूं, पर मैंने आपको ये भी बता दिया 115A में अगर फॉरेन करेंसी से अगर पैसा आता है और वो डिविडेंड जाता है तो उस केस में रेट 20% है, रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टैक्स 115A में। जैसे इंटरेस्ट का भी 20 है, फॉरेन करेंसी में आए। लेकिन अगर वो ट्रीटी है तो वो तो 20 का भी 10 हो जाएगा, ये तो मैं बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। अब आया ना, टीडीएस तो 194 का बता दिया, उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं 194C में एक बता दूं, पहले क्या होता था, अगर किसी की स्पेसिफिकेशन का माल बना रहे हैं और माल भी उसी से खरीद रहे हैं तो उस केस में टीडीएस कटता था। अगर माल बाजार से खरीदते हैं और उसको बना के दे रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटता था, वो कहते थे सेल ऑफ गुड्स है। लेकिन इफ यू आर परचेजिंग मटेरियल फ्रॉम हिम एंड देन मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, तो उस केस में जॉब वर्क करते थे, सिर्फ बिल अलग अलग बनाते थे, तो जॉब वर्क पे टीडीएस करता था, कंबाइंड बनाते थे पूरे पे। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, माल दे दिया अपनी सिस्टर कंसर्न से और माल बनवा लिया अपने लिए। जैसे कोको कोला ने कोई सिस्टर कंसर्न खोली, इधर से माल दे दिया। अब उसने कह दिया चाहे माल सिस्टर कंसर्न से खरीदो या उसी से खरीदो, आपका टीडीएस कटेगा 194C। अब आया 194J। अरे 194J में आपको पता है टीडीएस 10% कटता है, लेकिन उन्होंने 2 आदमियों का 10% से कम कर दिया, 2% कर दिया। क्योंकि हमेशा झगड़ा होता था, वन इज फी फॉर, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। वो कहते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विस। अगर तो आप प्रोफेशन करेंगे तो ऐसा ही है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस का 2 ही होगा। अरे 194C में भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो पहले हमेशा डिस्प्यूट होता था। वो कहता था एओ आपको तो 10 काटना था, आपने उसको वहां कैसे काट दिया, ये तो सॉफ्टवेयर था, ये तो टेक्निकल सर्विस थी, ये तो गलत किया आपने। लेकिन अब ये कर दिया। अब दूसरा मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, वो कहते थे 10 काटो, अब तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 2% की। एक और था, देखिए पहले जो रॉयल्टी की डेफिनेशन में सिनेमेटोग्राफी फिल्म की जो एग्जीबिशन थी या सेल था, वो रॉयल्टी नहीं मानी जाती। लेकिन सेक्शन 916 के नीचे जो रॉयल्टी की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और आप कह दिया गया है रॉयल्टी विल आल्सो इंक्लूड सेल, कंसिडरेशन फॉर द सेल और सेल और एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की जो सेल करोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे या एग्जिबिट करोगे तो उसमें अब ये रॉयल्टी मानी जाएगी। क्योंकि ये रॉयल्टी मानी जाएगी तो टीडीएस कटेगा। When you are selling a cinematography film and you receive a consideration,
you are giving for distribution, you receive contribution, you are giving for exhibition, you receive consideration, उस पे TDS कटना है 194J में, लेकिन इसके लिए भी रॉयल्टी में नहीं आएगा, 2% आएगा. So TDS on sale of cinematography film, exhibition of cinematography film, or distribution of cinematography film, TDS to be deducted at the rate of 2%, not 10%. ये 194J में कर दिया. 194N जो विड्रॉवल था 1 करोड़ से ऊपर, याद है बैंकों को कहा था, पोस्ट ऑफिस को कहा था, cooperative society are supposed to deduct TDS at the rate of 2% if the amount exceeds 1 crore. याद आया, 1 करोड़ के ऊपर हो तो 2% TDS कटना. ये सेक्शन 30 जून तक तो ये सेक्शन वैसे ही रहेगा 194N 30 जून तक. 1 जुलाई से it has been substituted by the new section 194N. नए में ज्यादा चेंज नहीं किया, पुराना तो वही रखा है. If it is more than 1 crore, 2%. Withdrawal, the bank will deduct 2%. But लिख दिया, एक proviso डाल दिया है 1 जुलाई से. Provided that if there is assessee who has not furnished the return of income of the past 3 assessment years, पिछले 3 सालों की इसमें assessment year की return नहीं भरी है, although he was required to file, then in this case the TDS will be deducted by these institutions, bank as a, if the amount of withdrawal in cash exceeds rupees 20 lakh. 20 lakh से ऊपर होगा तो 2% कटेगा. वहां तो 1 करोड़ था, या 20 लाख कर दिया. Aggregate withdrawal during the year exceeds rupees 20 lakh. आपको 1 जुलाई से 2% TDS काटना है. And if it exceeds 1 crore, 5% काटना है. 20 लाख पे काटना शुरू कर दीजिए 2%, 1 करोड़ से ऊपर हो तो बाकी पे काटिए 5%. अगर वो पिछले 3 सालों में उसने असेसमेंट ईयर में रिटर्न नहीं भरी है, although he was required, if any of the 3 assessment एक बार भी भरी हो तो छोड़ दे. ये 194N है. अब 194O डाल दिए. ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. आप कोई ई कॉमर्स से, फ्लिपकार्ट से, आप कोई अमेज़न से या माल खरीदते हैं, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है. ओला है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है. अरे जिवागो है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है. जोमेटो है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है. उबेर है, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई सप्लाई ऑफ गुड सर्विस नहीं करता है. गुड्स और सर्विस किसी और के होते हैं, वो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. गुड सर्विस किसके होते हैं? वो होते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के. तो इन्होंने क्या किया, every e-commerce operator at the time of making payment to e-commerce participant shall be under an obligation to deduct tax at source at the rate of 1%. At the rate of 1%. कोई इस पे exemption limit नहीं है. हाँ, अगर e-commerce operator individual HUF है तो 5 लाख तक exemption पूरा ईयर में. Otherwise 1% TDS काटेगा. कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर? कौन है ई कॉमर्स ऑपरेटर? चाहे सर ध्यान से सुनिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट को भी काटना पड़ेगा. अरे भाई, इसलिए सेक्शन 204 चेंज करके नॉन रेजिडेंट की भी ड्यूटी लगा दी कि तेरे को टैक्स काट के जमा करा. ई कॉमर्स अमेज़न इंडिया हो और अमेज़न बाहर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अलीबाबा बाहर का, चाइना का हो, वो भी अगर कोई प्लेटफॉर्म इंडिया का ई पार्टिसिपेंट का माल बेचवा रहा है अपने पार्टिसिपेंट पे, तो वो TDS काटेगा एट द रेट ऑफ 1%. एट द रेट ऑफ 1%. कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे रेजिडेंट है चाहे, लेकिन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होना चाहिए. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट है. सो मेरा माल अगर बिक रहा है अलीबाबा पे, पतंजलि का माल अलीबाबा पे बिक रहा है, अमेज़न फॉरेन कंट्री के पोर्टल पे बिक रहा है, फॉरेन कंट्री का, इंडियन का पोर्टल है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया का बाहर बिक रहा है, तो उस केस में वो वाला आदमी मुझे पेमेंट दे, पतंजलि को पेमेंट देते हुए काटेगा 1% TDS. ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का केस आ गया, लेकिन किसी और सेक्शन में कटता है तो इस सेक्शन में नहीं कटेगा. ये उन्होंने बोल दिया. ये 194O आ गया. अब 206C 1G and 1H नया डाला है, 1G and 1H.
लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में एक रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में किसी को भी पैसे भेज सकता है अप टू $250,000 पर ईयर विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई। इसे कहते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अप टू $250,000 अलाउड है। अब इन्होंने कहा कि कई लोगों ने देखा कि ये पैसे भेज रहे हैं, सीनियर सिटीजन भेज रहे हैं, रिटर्न भर नहीं रहे, ये पैसे आते कहां से, इसको चेक करो। मैंने कहा चेक तो करो, क्या आप तो ऑलरेडी चेक हो जाता है रेमिटेंस में भर में। कहते नहीं, अब TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड डीलर who remits that amount to a foreign country is under an obligation to collect the tax at source from the resident of India who remits that amount to a foreign country if that amount exceeds rupees 7 lakh. 7 लाख तक कोई नहीं कटना। 7 लाख से ऊपर है तो उस अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख पर आपको TCS कलेक्ट करना है 5%। मैंने कहा सर क्यों मरवा रहे हो, 5% बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरा बच्चा फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहा है, फीस है 40 लाख रुपया साल की। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने लोन लिया और उसको फीस भेजी। अरे 40 क्या, करोड़ रुपया फीस है, 40 तो बहुत कम है, 2 करोड़ रुपया फीस है। मैंने बड़ी मुश्किल से लोन लेके अरेंज किया। अब आप कहते हो कि 5% TCS भी होगा। सर मैं फॉरेन कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया और वहां पर मुझे पैसा चाहिए 1 करोड़ रुपया, आप कहोगे 1 करोड़ रुपया रेमिट किया तो 5% ये भी दे, हो सकता है मैंने कहां से अरेंज किया। सर ऐसा मत करो। लेकिन वो माने नहीं। एक चीज में मान गए कि अगर आप फॉरेन कंट्री के आपने एजुकेशन लोन लिया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 80E, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो उस केस में रेट ऑफ TCS विल नॉट बी 5%, 0.5%, 0.5% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख। बाकी मेडिकल के लिए नहीं, बाकी केस में रेमिटेंस जितनी भी फॉरेन कंट्री में करेंगे वो जो ऑथराइज्ड डीलर है 5% TCS कलेक्ट करेगा। और दूसरा इसी में है दैट इफ यू हैव टेकन ए फॉरेन टूर पैकेज, आजकल तो कोई होगा ही नहीं टूर पैकेज, अब तो साल भर कोई जाएगा ही नहीं, डर के मारे भी नहीं जाएगा। लेकिन अदरवाइज ये फॉरेन टूर पैकेज था, तो अगर वो है तो उस केस में द फॉरेन टूर ऑपरेटर विल हैव टू कलेक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। उसमें कोई लिमिट भी नहीं थी, 5% ऑफ द फॉरेन टूर पैकेज प्रोग्राम। लेकिन सुनिए, ये डेट 1 अक्टूबर से शुरू हुई, पहले अप्रैल से थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया था गवर्नमेंट अमेंडमेंट में 1 अक्टूबर से। तो अभी तो 1 अक्टूबर आया ही नहीं है। और 1 अक्टूबर आया और कोई फॉरेन टूर पैकेज में गया तो उस केस में 5%। कोई रेमिटेंस भेजी अप टू 30 सितंबर, रेमिटेंस में कोई TCS नहीं है। अप टू 30 सितंबर में रेमिटेंस में TCS नहीं है ना। रेमिटेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, इफ द एग्रीगेट ऑफ द होल ईयर एक्सीड 7 लाख तो TCS कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5% और 0.5% एज द केस में। ये 206C1G है। और 1H में कह दिया every seller of the goods when while making a payment to the supplier of the goods, seller of goods, while receiving the payment from supplier of goods, if their payment exceeds 50 lakh shall collect tax at the rate of 0.1%. कौन करेगा? seller of goods. seller of goods और goods है, services नहीं है। seller of goods है at the time of receiving the payment in aggregate exceeding 50 lakh, तो उसके ऊपर टोटल जो 50 लाख से ऊपर है उसमें 0.5% TCS कलेक्ट करेगा। TCS कलेक्ट करेगा। लेकिन ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में नहीं है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हटा दिया। और यहाँ कोई TCS कहीं और किसी सेक्शन में डिडक्ट होता है तो भी नहीं हो में है तो भी नहीं। तो ये TCS 0.1% है, कलेक्ट करना पड़ेगा। ये 206C1, ये भी 1 अक्टूबर से आया। अब मैं बहुत ले लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत होंगे, एक लास्ट ले रहा हूं 27188D। जरा ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक सेक्शन आया, बहुत ही खतरनाक सेक्शन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट विद स्टैंडिंग नहीं है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कहता उन एक्ट में जो भी लिखा है उसमें जितनी भी पेनल्टी है वो तो लगती रहेगी विदाउट प्रेजुडिस। जैसे सेक्शन 271 ए में सब सेक्शन 9 में 200% पेनल्टी है, वो 200 लगेगी, 50 है तो 50 लगेगी, या किसी और सेक्शन में कोई भी एंट्री है मैं नहीं जानता, विदाउट प्रेजुडिस। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग it is found that in the books of accounts maintained by you there is a false entry। पहले सुन लीजिए मैंने क्या कहा, without prejudice to any other provisions of the income tax act। if during the course of the proceedings under the income tax act it is found in the books of accounts maintained by you there is a false entry or an entry which has been omitted, which was relevant for computing total income, and that omission has been done to avoid the income tax. There is a false entry in your books of account, and it is maintained by you, and it is found that there is a false entry, or their entry has been omitted by you. वो सेल आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, omitted by you, which is relevant for computing your total income. To avoid tax आपने वो एंट्री omit कर दी। Then the assessing officer, ये assessing officer लगाएगा, may direct the assessee to pay penalty of a sum equal to the aggregate amount of the false entry or an entry which has been omitted। मर गया बेचारा। अगर कोई आपकी किताबों में ये पाया गया कि उसमें कोई फॉल्स एंट्री है, क्या होगी फॉल्स एंट्री बताता हूं। देयर इज ए फॉल्स एंट्री और देयर इज एंट्री विच हैज बीन ओमिटेड बाय यू विच वाज रेलेवेंट फॉर कंप्यूटिंग योर टोटल इनकम, और आपने ये ओमिट किया है फॉर अवॉइडिंग द टैक्स। आपने सेल ओमिट कर दी, जान के नहीं डाली, कोई इनकम ओमिट कर दी, जान के नहीं डाली, ये भी हो सकता है। या आपने कोई बोगस फॉल्स एंट्री डाली, उस केस में 100% पेनल्टी लगेगी। ऑफ हाउ मच अमाउंट? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द फॉल्स एंट्री, कितनी भी जो इतनी भी एंट्री है, और फॉल्स ओमिशन ऑफ एंट्री, ये सबसेक्शन 1 है। अब सबसेक्शन 2 पता क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब 271 AAD1, a person who causes the other person to make false entry or causes him to omit an entry shall also, the AO may direct that person shall also be liable to pay penalty of a sum equal to the amount of the false entry or aggregate amount of the false entry or the omitted entry। मतलब जिसने वो एंट्री करवाई, who causes him to make that entry or causes him to omit that entry, वो भी चला जाएगा। वो तो कहेगा सर मेरे सीए ने ये बिल दिलवाया था, मुझे नहीं पता, उसने कहा था ये जेन्युइन बिल, तो सीए भी गया, 100% पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर भी ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री। इंस्टीट्यूट की जो प्रोसीडिंग होगी वो तो अलग है, यहाँ भी मर जाएगा। ध्यान रखिए, जान और फॉल्स एंट्री को नीचे डिफाइन कर दिया। False entry means an entry which you were supposed to use or you had intention to use, which is a forced entry, forced invoice. It is a forced invoice or falsified document in general or documents in specific. It is not documentary evidence नहीं है। और दूसरी false entry का मतलब क्या, जरा सुनना, that there is a supply of goods or services by a person, but there is a bill, there is a invoice for supply of goods or services without supplying the goods or services। उसमें goods और bill तो दिया गया है लेकिन goods और services provide नहीं की, without supply। ये दोनों को लगेगा, जिसने provide की और जिसने bill receive किया, by the person or from a person, 100% penalty। मतलब बिल दिया है, बोगस बिल लिया या बोगस बिल दिया,
बोगस बिल दिया या लिया ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट विदाउट डिलीवरी ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स बिल और बिल है और ना ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और ना ही माल प्रोवाइड किया है। ये फॉल्स एंट्री है और जब फॉल्स एंट्री हो गई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप इन चीजों में मत पड़ना सर। कोई ये बोगस एंट्री वाला काम ये जो है अब फंस जाएंगे। वो मरेगा तो वो मरेगा, उसको बता दो। लेकिन अब उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन आने वाली है और ये 271 ED में पेनल्टी तो एक्स्ट्रा है और सेक्शन में भी लगेगी उसको 271 AA में या कोई और जो सेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि काफी देर हो गई, 1 घंटा 45 मिनट हो गए। अब आपकी क्वेरीज होंगी। अच्छा, वो ऑर्डिनेंस का तो आपको सबको पता है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उस ऑर्डिनेंस में आपको पता है कि 30 जून तक डेट एक्सटेंड कर दी। किसकी? सारी क्वार्टरली रिटर्न की भी। आपकी जो रिटर्न ड्यू होती 31 मार्च को, वो जो बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 1920 की या रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1920 की, वो भी एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून तक। आपको पता है, आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट भी एक्सटेंड कर दिया गया था। कोई नोटिस, कोई इंटीमेशन, कोई ऑर्डर, कोई सैंक्शन ऑर्डर, कोई फाइलिंग ऑफ अपील, फाइलिंग ऑफ ए रिटर्न, जो ड्यू डेट बिटवीन 20 मार्च टू 30 जून थी, 20 मार्च टू 30 जून जो भी ड्यू होता था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून में। लेकिन जो टैक्स का अमाउंट था, TDS है, जो एडवांस टैक्स 15 जून को देना है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। उसमें तो सिर्फ एक कंसेशन दी गई है कि जो इंटरेस्ट पेबल होगा, अगर 30 जून तक पेमेंट करा देंगे तो 9% या 0.75% पर एन मंथ होगा और पार्ट ऑफ द मंथ होगा इंस्टेड ऑफ 12% ऑफ 18%। ये कहा गया। तो जो TDS आपका मार्च का था, आपको 7 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक कराना था, 30 जून तक करा देंगे तो प्लीज अप्रैल, मई, जून का जिस ड्यू डेट के बाद 3 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा। अप्रैल का 5 मई को कराना था, 30 जून तक करा देंगे तो 0.75% इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर 30 जून के बाद कराएंगे तो पूरा पड़ेगा 12-18। और जो मई का 7 जून को कराना था, 30 जून तक करा देंगे तो 0.75% इंटरेस्ट पड़ेगा। 30 जून के बाद कराएंगे तो पूरा 1% या 1.5% पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ये एडवांस टैक्स जो 15 जून तक करा देंगे तो ठीक है, अगर 30 जून तक कराएंगे तो 2.25% पड़ेगा, क्योंकि वो तो 3 महीने का पड़ता है। कोई पागल आदमी है कि एक 15 दिन के लिए 2.25% पड़ जाएगा उसको? मैंने तो रिक्वेस्ट करी चेयरमैन को, उनको मेरे बातें होती रहती है, टेलीफोन भी आया। मैंने कहा सर इसकी ये एडवांस टेस्ट की ये खत्म कर दो 15 जून वाला, इसको तो इकट्ठा ले लो 15 सितंबर में, नहीं तो 1 महीना एक्सटेंड कर दो। वो कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा सर पैसे कहाँ से आएंगे, आपने तो एक और मरवा दिया कि TDS अब 25% कम कर सकते हो। अरे काट के नुकसान ही किया मेरा। अरे मुझे एडवांस टैक्स तो देना ही देना है। अरे आपने मेरा जो क्रेडिट में लेता था TDS पहले पूरा लेता था, 25% कम कटेगा तो मेरी इंस्टॉलमेंट 15% वाली ज्यादा ही होगी। अरे फिर आगे 30% फिर ज्यादा होगी। ये तो बेवकूफ बनाया हमें। आज ही 25% कम TDS होगा, फायदा उनको होगा जिसका रिफंड आता था, हमें तो एडवांस टैक्स देना ही पड़ता था, तो हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो देना ही पड़ेगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है, अभी तो 2-3 दिन और है, मान जाए तो अच्छी बात है, मानने वाले हैं नहीं। वो कहते पॉसिबल नहीं है। मैंने उनको ये भी कहा, जो ये विवाद से विश्वास का जून से एक्सटेंड किया है वो भी आया कहाँ है? आपको तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा सर। ऑर्डिनेंस पहले आ गया 30 जून तक का विवाद से विश्वास का, अभी तो ऑर्डिनेंस आना है जो दिसंबर तक एक्सटेंड किया। अरे जो आपने कह दिया री रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, वो तो मैंने करा ही नहीं, सॉरी, चैरिटेबल ट्रस्ट तो भूल गया सारा। वो री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। वैसे तो 31 अगस्त लास्ट डेट थी, वो बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। हर आदमी को जो 12 AA में या 1023C में अप्रूव्ड है, एवरीबडी, वो हमने रिकमेंड किया। होता क्या है, किसी के पास 30 साल पुराना सर्टिफिकेट था, वो खो गया, 40 साल पहले रजिस्टर हुआ, खो गया, नंबर है बट ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट सर्टिफिकेट। ये कहता है सर्टिफिकेट लाइए। हमने कहा सर एक सिंपल इंटीमेशन ले लो, उन्हें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ले लो और उसको कहो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा दे दो, यूनिक ID, और उसको देकर आप उसको कहो कि अब ये वाला नंबर आपके पास। पर हमने कहा था एक बार कर दो, हमने ये थोड़ी कहा था कि 5 साल के लिए अब वैलिड होगा।
अब तो इन्होंने नया रूल बना दिया, जो भी नंबर मिलेगा that will be valid for 5 years and you will have to get the renewal of that certificate at least 6 months before the expiry of that 5 year. 4.5 साल से पहले आपको दोबारा लेना है. ये पहले नहीं था. ये तो 23C में भी कर दिया, 11-12A में भी कर दिया और 80G में भी कर दिया. और अब जब नया अप्लाई करोगे फर्स्ट टाइम, अब प्रोविजनल मिला करेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और वो भी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years होगा और आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 6 months after the commencement of the activity or at least 6 months before the completion of 3 years. नया अप्लाई करना पड़ेगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन. और एक और कह दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट जो 80G जिसको मिला हुआ है उनको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑफ द डोनर, द अमाउंट रिसीव्ड, वेदर नेम, एड्रेस, डोनर, पैन नंबर, सब, और वो लिस्ट को अपलोड करना पड़ेगा ऑन द साइट ऑफ द गवर्नमेंट इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. आएगा विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, क्वार्टरली होगा कि ईयरली होगा वो बताएंगे, बट यू विल हैव टू अपलोड दैट एंड फ्रॉम देयर इट विल बी अपलोडेड टू द साइट ऑफ द एसएससी. अब आपको डिडक्शन 80G की तभी मिलेगी जब आपकी साइट में वो अमाउंट होगा. अगर आपकी साइट में वो अमाउंट नजर नहीं आ रहा तो आपको वो डिडक्शन मिलेगी नहीं. अगर आपने दिया हुआ है तो आप कहेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट को, भैया ये रिटर्न को रेक्टिफाई कर, क्योंकि मैंने तेरे को डोनेशन दी थी. लेकिन अब पहले तो बोगस दिखा देते थे ना, अब नहीं होगा. यू विल हैव टू डू इट. और सेकेंडली चैरिटेबल ट्रस्ट को एक और मुसीबत हो गई. सपोज उनको 6 करोड़ का आपको मिला डोनेशन, आपने रिटर्न भर दी, क्वार्टरली स्टेटमेंट जो भी भेजी, 4 करोड़ की भेजी, तो कहेंगे 2 करोड़ अनोनिमस है, ला टैक्स दे, क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाई. अरे 4 करोड़ की आपने भेजी ना, और 6 करोड़ आपको टोटल आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, तो 2 करोड़ कहां से आया? चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तो वो 2 करोड़ क्या होगा? अनोनिमस होगा, और अनोनिमस होगा तो 115 बीबीसी लग जाएगा और 30% टैक्स लगेगा. सॉरी सर, मैं ये भूल गया था, लेकिन फिर भी आपके कोई ऑब्जेक्ट चेंज होंगे तो 30 डेज में आपको अप्लाई करना है. ये मैं भूल गया था जल्दी में, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया. फिर आपकी क्वेरी होगी तो मैं उस पर ले लूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग. प्लीज. Thank you. चलिए, sorry for the delay, but there was too much to be talked about, I tell you. Thank you, sir, for the informative, excellent session. Really wonderful. Your different way of explaining the things, and it is very simple. I now request CA Chintan Shah to take some questions raised by the members in the chat box. Please do that. Good afternoon, sir, and thank you for your wonderful session. I'll just summarize the questions which I've already put on your chat box also personally, but I'll call out one by one. You want me to see my chat box? I can see. Yeah, but sir. If you want to ask, you can ask. I've sent you personally on your chat box personally. अरे वो तो मैं ले लेता हूँ. हाँ कर दो, मैं चैट बॉक्स में निकाल लेता हूँ सर, मुझे भी आता है. कर दिया सर, कर दिया. कर दिया, मैं चैट में ले लेता हूँ सर. या पर इसमें कई वो होते हैं ना, थैंक यू वेरी मच, गुड. नहीं सर, नहीं डिलीट किया. पर्सनल, आपका पर्सनल चैट देख लीजिए आप. मैंने सिर्फ क्वेश्चन सबमिट दिए. पर्सनल चैट में जाऊँ, मैंने जनरल चैट ले लिया क्या? हाँ हाँ, अभी देखता हूँ सर. मेरे पर्सनल चैट में तो नजर ही नहीं आ रहा. कहाँ पर है भैया? I'll send it again सर, मैं वापस भेज देता हूँ. 1 मिनट. हाँ जरा भेजो सर. आ गया. या सर, करेक्ट करेक्ट. या सर बहुत छोटा लिखा, वैसे मैं चश्मा. Can I read it sir? You want me to read? नहीं, I'll read. Don't worry, I'll read. बहुत छोटा है, नजर आ रहा है, इसलिए बड़ा नहीं होता ये. What about Indian origin who have come to India and could not go back to the employed country? अरे आपको पता ही है, कोविड में उन्होंने अलाउ कर दिया. पिछला 31 मार्च में 9 दिन ही थे. इस साल का अगले साल करेंगे ना, अभी इतनी जल्दी क्या है? अरे भैया, अगर वो 20 मार्च से आया था और जा नहीं सका तो 10 दिन का ही तो बेनिफिट दे दिया है उन्होंने, कि कोविड की वजह से वो नहीं जा सका. तो और इस साल जो अगर नहीं जा सका है वो तो अगले साल देंगे ना यार. अभी आ जाएगा उसका बेनिफिट, डोंट वरी. टैक्स ऑडिट 5 करोड़ लिमिट, वेदर एप्लीकेशन फॉर AY 2020, ये 2021 के लिए है. ये जो अभी रिटर्न जानी है उसी के लिए है टैक्स ऑडिट की. ये 21-22 का नहीं है, 2021 का ही है. प्लीज नोट. थर्ड, इनकम टैक्स एक्ट एट वेबसाइट इज नॉट येट रिप्लेस्ड आफ्टर दीज अमेंडमेंट एज पर. कौन कह रहा है? पूरा फाइनेंस एक्ट 2020 वहां पर है. इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन यू आर अवेयर ऑफ? सर पूरा फाइनेंस एक्ट 2020 है. अगर ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस देख लीजिए, वो एक्ट में थोड़ी डालेगा, वो तो ऑर्डिनेंस है. ऑर्डिनेंस एक्ट में नहीं डाला जाता, वो तो एक्ट में डाला, इनकम टैक्स एक्ट में डाला जाएगा ना. अब फाइनेंस एक्ट देखिए अलग है, इनकम टैक्स में वो अलग है, ऑर्डिनेंस बाद में आया, और ऑर्डिनेंस के बाद तो बिल बनेगा
या ऑर्डिनेंस पास होगा पार्लियामेंट के लिए, तो आप चिंता नहीं कीजिए, आएगा और एक ऑर्डिनेंस और भी आएगा। साइट में पूरा अपडेट है, डोंट वरी। इफ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल, पैन इज नॉट अवेलेबल, आज यार इंटरलिंकिंग हो गया, अभी तो आधार के साथ भी आपकी रिटर्न जाएगी, वो तो कर दिया उन्होंने। यू कैन फाइल रिटर्न विद इन आधार ओनली ऑल्सो। और आपने आधार डाला नहीं, ऑटोमेटिकली पैन मिल जाएगा आपको। आधार को डालते ही ऑटोमेटिकली पैन आपको अलॉट हो जाएगा, ये भी उन्होंने कर दिया है। आप तो वो पैसे भी बचा लो पैन नंबर लेने के, आधार नंबर डालो, पैन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। सो डोंट वरी, आधार डालो, पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। इफ नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन staying in Dubai, having income less than 15 lakh in India, including from Indian and controlled business, he is not paying taxes in that country. Still, he has to declare his foreign asset. No, he is not a resident. सिर्फ रेजिडेंट को डिक्लेयर करनी पड़ती है, बाहर वालों को थोड़ी करनी पड़ती है। और इवन इसको भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रीटी है, और ट्रीटी की वजह से वहां का रेजिडेंट हो गया तो यहाँ का नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, इसको करनी नहीं पड़ेगी। नो 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 क्वेश्चन। चलिए 15G, ये डेट एक्सटेंड कर दी थी 15G का, आपको पता है। और 194 का तो मैंने बता दिया था, 194 इज अलाउड फॉर सेक्शन 194N। नहीं 194N के लिए थोड़ी है 15G, क्या बात कर रहे हो यार, करोड़ रुपया इकट्ठा विड्रॉ कर रहे हो और 15G थोड़ी है उसके लिए। जी नहीं। इन केस रेमिटेंस इज मेड प्रायर टू अक्टूबर विच इज अराउंड 20 lakhs एंड आफ्टर दैट, देखिए टोटल के लिए अंदर 7 लाख जोड़ने के लिए पुराना भी जुड़ेगा, लेकिन सितंबर तक जो भेजा उसमें TDS नहीं कटेगा। लेकिन पिछला मिलाकर अगर 7 लाख से ऊपर हो गया तो 1 अक्टूबर से कटना शुरू हो जाएगा। अगर पीछे 5 लाख है तो 2 लाख के बाद होगा, पीछे 20 हो चुका है तो पहले रुपए से जब रेमिटेंस करोगे तो होगा। तो पूरे साल का 7 लाख देखना है तो अक्टूबर तक का भी लिखना पड़ेगा। चलिए, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ कार फ्यूल रियम्बर्समेंट एंड टेलीफोन रियम्बर्समेंट इन केस द एम्प्लॉई हैज ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स? अरे सर ये आएगा भी, ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो अलग बात है, इसकी अभी आना नोटिफाई करना है उन्होंने कि कौन कौन से बेनिफिट वो अलाउ करेंगे, अभी किए नहीं। लेकिन ये वाला सिर्फ रियम्बर्समेंट ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो होगा। अगला क्या है, whether TCS is applicable to fund transfer to abroad for maintenance purpose under again 50 CAB? क्या TCS applicable to fund transfer to abroad? सर मैंने आपको बोला 15 CA तो लगेगा ही लगेगा। जब भी कोई फंड ट्रांसफर करते हैं CA CB तो भरना ही पड़ता है, और उसके लिए आपको पता है कहां पर जरूरी सिर्फ 15 CA है और 15 CB नहीं है, कहां पर दोनों है वो तो आप रूल देख लीजिए। लेकिन वो तो TCS भी कलेक्ट होगा और 15 CA भी जाना पड़ेगा। चलिए, फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट डज नॉट वन नीड टू रीअप्लाई? यस, ATG के लिए मैंने बोल दिया, आपको रीअप्लाई करना है, सबको करना है री रजिस्ट्रेशन, और इन सिंप्लीफाइड फॉर्म अप टू 31 दिसंबर कर दिया गया है, लेकिन मिलेगा 5 साल के लिए, पूरा नहीं मिलेगा। चलिए सर, दी सर्कुलर फॉर लोअर विद होल्डिंग, क्या कह रहे हैं, जब चला गया वो सर, चला गया, दब गया मेरे से गलती से, दोबारा भेजिए सर। आई एम रियली सॉरी, मैंने वो गलत दबा दिया, वो चला गया। नहीं सर, I think the questions which are came are already exhausted. People are अच्छा। posting no questions. I think we can, as per the time is permitted, we should. ओके थैंक यू। Whatever is possible, you can take. Yeah. Yeah. कोशिश जो करी सारे जवाब दे ही दिए हैं, और वो जो Yes, sir, yes, sir. एक्सप्लेन भी कर दिया है सारे सेक्शंस। चलिए, थैंक All यू। questions are answered. मेरा अगला 2 बजे फिर Now, प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा रेस्ट। Yeah, so definitely we'll relieve it, sir. And now, Okay. on behalf of JB Nagar Study Circle, sir, I have been given the pleasant task of giving you a formal I vote know of- you are a convener of this circle. Yes, sir. Thank you so much. चलिए It was a really a wonderful session. Sir, you are a great orator and you've been speaking so Thank you. fluently without reference to any material. It was a great session. वो संजीव मिश्र ने कह दिया था, वो अगर उनकी बात नहीं मानता तो मेरे को मार देते। उन्होंने कहा था ये पेपर नहीं रखते, तो मैं नहीं रखूंगा। Special thanks to Sanjeev ji for organizing Girish Ahuja's lecture, and sir, really wish you a very, very good further thing. And one more thing, sir, as you have already delivered more than 100 lectures, thank you for accepting our invitation. ये also. 95th था, And 95th you were था। members also on this. ये 95th था, 100 नहीं हुए अभी। Okay, 96 हो करना जाएंगे, है। हो Almost जाएंगे। 100, sir. Thank you so much. Thank you. And Pleasure. welcome you, sir. And we'll be looking forward to your attendance in person very soon, sir. I'm very Thank you, happy it was a full house. All 500 people you. were there, maybe little more than that, I don't know. But stay healthy, please take care. ध्यान रखिए, बाहर मत जाइए ज्यादा,
ना पेट को बाहर आने दीजिए, ना खुद बाहर जाइए। ये पेट भी बाहर आना बहुत गलत है। ये जो हम अपनी फैमिलीज को तंग कर रहे हैं, ये बना कर दे दो, ये बना कर दे दो, ये मत करना। स्टे हेल्दी and please take care of yourself. Take care. Thank you very much. I'm very Thank you. pleased to deliver this lecture. Privileged to meet you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, for the Sanjeev ji. wonderful Thank you. lecture. All the very much, best. sir. Take care, sir. Thank Thank you, you very Sanjeev ji. much.